Assalamu alaikum to all the participants and the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teaching Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training valley, working as Vice Principal at Rehan Academy and facilitator at Rehan AI Teaching Institute, teacher training bootcamp for 2 months. Tonight is the 30th July 2025 and the time is 7 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Standard Time. I welcome all the participants in today's class. I'm hoping every participant is enjoying good health and join the class with very high spirits who will learn something different and new today night. Thank you so very much for joining. Let's practice the meditation and then we'll proceed towards the class. Naseemullah bhai, please play the meditation video. Palms rest in your lap, facing open. And gently close your eyes. Begin by focusing on your breath. Feeling your belly expand as you breathe in and contract as you breathe out. Letting your breath slow down as you feel yourself dropping into your body, feeling the points of contact between you and the surface on which you are rested. Feeling the flow of air entering and exiting, letting it be easy. What else do you notice? As you let yourself connect to this present moment through your breath and body, you tune in to the desire you have in your heart to be someone who is adept at positive thinking. It is a practice and a skill we can cultivate and grow. Feel a sense of excitement and appreciation towards yourself for committing to shifting your perspective. As you feel thankful to yourself, we begin to see a bright blue sky above, completely clear of any clouds. You may even imagine a cool breeze brushing against your face. The air feels open. You feel as though you are receiving more oxygen now. And as you look at the clear blue sky, you feel into the energy in your brain. You turn your awareness inwards, focusing on your brain. Doing so may cause a tingling sensation. As you focus on this space, feel a sense of love and appreciation for your brain. What an incredible machine. And as you send love to your brain, you see it lighting up. You see it sparking with love and gratitude and deep appreciation for all that it does. And as you feel it lighting up within you, you affirm to yourself, I choose to see the good in the world. I choose to perceive the world as love. I choose to see myself as doing well in my life. I
choose to believe. There are always creative possibilities for everything to work out for me. I know that I am responsible for how I view the world, and so I choose to view it through the lens of love and positivity. Take a nice deep breath in, stomach and ribcage fully expanding, holding your breath at the top. And when you're ready, exhale with a sigh. You bring your awareness back to where you are right now, again feeling the points of contact between you and the surface on which you are rested. And you begin to roll your shoulders, wiggle your fingers and toes, and when you're ready, open your eyes back to the world around you. Wonderful job today. Thank you so very much, participants, for practicing this meditation video. आज एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करती चलूं कि मुझसे 2 से 3 बार पूछा जा रहा है बार बार एक ही चीज को। पार्टिसिपेंट्स, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने तमाम टास्क को अपलोड करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपके कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि अपलोड नहीं हो सकते, क्योंकि खैर मैंने उसका वेट भी बता दिया, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बेशक नहीं पोस्ट कीजिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से तो नहीं किया, इसलिए अब ना करें ताकि ज्यादा परेशानी ना हो। हमारे जो कैनवा पोस्ट हैं, स्टोरी पोस्ट हैं, उनको आप अपने यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको अपलोड करना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक। यूट्यूब पे ना तो आपकी स्टोरी पोस्टिंग होगी, ना ही आपके सोशल मीडिया पोस्ट होगी। ये 2 टास्क आपके यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। बाकी तीनों प्लेटफॉर्म पे आपके ये दोनों टास्क जो है वो अपलोड होंगे, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यूज जो है आप डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, और वो आपने करना है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरव्यूज है वो बहुत एक प्रॉपर टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको पूरे सिस्टम के अंदर हमारे, चाहे वो रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी हो, या रिहान स्कूल फिजिकल कैंपसेस हो, या रिहान IIT इंस्टीट्यूट हो, सब में ही जो इंटरव्यूज हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसको आपने चारों प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है। तो प्लीज जितने भी इंटरव्यूज आप कंडक्ट कर रहे हैं और जितने इंटरव्यूज आप किसी को दे रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि चारों प्लेटफॉर्म पे हमारे इंटरव्यू जरूर अपलोड करें, ठीक है, और आपको टैग भी कर दें। तो अगर इसके अलावा कोई टास्क है तो आई थिंक बाकी सारे टास्क जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली चारों प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाते हैं, जिसमें आपकी वीडियोस हैं जो कि आप रिव्यू वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी फेसेस वीडियोस बन रही हैं, वो वाली भी वीडियोस आपने हर जगह अपलोड करनी है। और इसके अलावा कोडिंग के टास्क स्पेसिफिकली आप सिर्फ अपने लिंक्डइन पे और फेसबुक पे अपलोड करेंगे। इन 2 प्लेटफॉर्म के अलावा आपने अपना कोडिंग का टास्क भी कहीं अपलोड नहीं करना है, क्योंकि जब इंस्टाग्राम पे हम अपलोड करते हैं ना किसी भी लिंक को, तो क्लिकेबल लिंक्स नहीं आते इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम की अपनी रिदम्स है जिसमें कि आपके पास क्लिकेबल लिंक्स नहीं होते, जिसकी वजह से क्लिकेबल लिंक्स ना होने की वजह से आप जो है उनको पोस्ट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट्स अपलोड करने पड़ते हैं, उन स्क्रीनशॉट का कोई वैलिडेट पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आप अपलोड नहीं करें। इसी तरह से यूट्यूब पे भी अगर आप इसको अपलोड करते हैं तो वो अभी तक खैर हमें नहीं कहा गया, लेकिन अभी सिर्फ रेहान ने हर एक जो आपका टास्क ऐड किया हुआ है कोडिंग का, उसमें सिर्फ लिंक्डइन और फेसबुक को मैंडेटरी किया। इन 2 प्लेटफॉर्म पे ही आपने अपने कोडिंग के टास्क अपलोड करने, ठीक है। जी जावेद भाई, आपको कुछ कहना है? जी मैम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी अपनी जॉइन जो लाइव क्लास चल रही है, इसका जो है रिकॉर्डिंग करके इसको यूट्यूब पे पोस्ट करना है। किसको यूट्यूब पे पोस्ट करना है? जो अभी लाइव क्लास चल रही है इसकी जो रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग।
नहीं जावेद भाई, मैं ये बता रही थी कि जो हमारे टास्क है ना डे टू डे, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ग्रुप के अंदर, और फिर आपको जो है उनको शेयर करना होता है बाद में अपनी प्रोफाइल पे आप परफॉर्म करके, और आपने अपनी अपनी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे उनको अपलोड करना होता है। अपलोड करके अब ये कुछ टास्क जो है कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं, कुछ टास्क कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होते। तो मैं वही बात गाइड कर रही थी कि कौन कौन से टास्क किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होंगे और कौन कौन से टास्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं करनी, क्योंकि वहां वो वैलिड ही नहीं होते और उनका कोई फायदा नहीं अपलोड करने का। ठीक है, तो ये बात मैंने समझाई है, जिसमें मैंने बताया कि जो कोडिंग का टास्क है वो आपने अपलोड करना है सिर्फ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, उसको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपने फेसबुक और जो है वो लिंक्डइन पे अपलोड करना है। इंस्टाग्राम पे आपने जो अपने कोडिंग का टास्क है उसको अपलोड नहीं करना। इंटरव्यूज को आपने अपने चारों प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है चारों प्लेटफॉर्म के लिए, तो इसको चारों प्लेटफॉर्म पे ही अपलोड करना है। और देन आपके जो एआई सेशंस है वो भी आपके चारों प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और जो आपके रिव्यूज हैं, आपकी फेसलेस वीडियोज है, वो भी आपके चारों प्लेटफॉर्म पे अपलोड होंगे। ठीक है, इसके ठीक। अलावा आपकी कैनवा पोस्ट हो गई जिसको हम सोशल मीडिया पोस्ट कहते हैं, या हमारी जो है वो स्टोरी पोस्ट हो गई। इन दोनों को आपने तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है, जिनमें एक आपकी फेसबुक है, एक लिंक्डइन है और एक आपका इंस्टाग्राम। इन तीन प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी फेस स्टोरी पोस्ट और सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो इन तीन प्लेटफॉर्म पे अपलोड होनी है। बाकी आपके जो टास्क है उनका मैंने बता दिया किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने हैं और किस पे नहीं। ठीक है ठीक। जी, मैं सुपना आपका हैंड रेज है। अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे रिलेटेड मैम कल क्लास में बात हुई थी, तो मेरा ही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आ रहा था कुछ ज्यादा, तो फिर मिस सीरम ने कुछ सोल्यूशन बताए। बाज दफा ऐसा होता है ना, माइंड से कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो और इशू रिजॉल्व हो गया। तो वो मैंने एक तो थैंक यू करना था इरम से, और दूसरा दूसरा मैम अभी एक इशू जो मैं देख रही हूँ ना, वो ये कि लिंक्डइन जो है वो मुझे कह रहा है कि सिर्फ 15 मिनट्स और 3 सेकंड्स की वीडियो जो है वो अपलोड अपलोड कर सकती हैं। तो वो तो दैट्स लाइव सेशंस तो हो गए मेरे, बट जो इंटरव्यूज है ना वो मेरे 30 मिनट से अबव जा रहे हैं, वो अपलोड नहीं कर पा रही वहां पे। फिर मैं लिख दूं, बल्कि मैंने लिखा भी है 2 जगह पे कि लिंक्डइन मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि ये अपलोड करूं। वो एक हाँ हो गया ठीक है। सोल्यूशन। अगर आपका जैसे कि आपने बताया ना कि इंटरव्यू 30 मिनट्स का तो अपलोड नहीं करने दे रहा, जी वैसे तो जी। ये सिर्फ है कि उसको आप क्रॉप करके अपलोड कर ले, लेकिन क्रॉपिंग एक फिर दूसरा मसला है कि आप उसको फिर से एक अच्छा खासा हेक्टिक टास्क है, उसको क्रॉप करें हर वीडियो को बैठ के फिर अपलोड करें। तो हम ये कर सकते हैं कि आप उसको डायरेक्टली जो है वो वहां पे जिसे कहते हैं ना कि अपने गूगल शीट में उसको मेंशन करते हैं कि लिंक्डइन पे मेरे इंटरव्यूज अपलोड नहीं हो पा रहे ड्यू टू द टाइम ड्यूरेशन। जैसे कि हमारी जो स्पेसिफिक टाइम लाइन है वो 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स है कि आपने इतना इंटरव्यू करना है, तो ये हम्म। वाले टाइम लाइन पे वो लिंक्डइन फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप रजिस्ट्री को फॉलो कर लेंगे सुपना, तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। आप डायरेक्टली लिंक्डइन और फेसबुक को कनेक्ट करके अपने इंटरव्यूज को कंडक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको अपलोड सिर्फ और सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म रह जाएंगे आपके, और उस पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जी मैम, वो उसके लिए वो अकाउंट नहीं हुआ लिंक्डइन का, तो इस वजह से रीस्ट्रीम जो है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो अच्छा, रहा। ठीक है, ये गॉट इट इशू गॉट आ इट, रहा ठीक है, तो है। फिर और आप एक लिख और सकते हैं। आप लिंक्डइन की दो रीजन इकट्ठे लिखिएगा। आई हैव अ न्यू अकाउंट आई क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस बूट कैंप, और फिर साथ में लिखिएगा कि लिंक्डइन जो है वो 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं करता। दैट्स इट। अब इतना लिख दें ताकि आप ठीक पता है। रहे कि आपने बाकी तीनों प्लेटफॉर्म पे अपने जो है वो अपलोड कर दिया, लेकिन लिंक्डइन पे नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है मिस, थैंक यू। और एक और चीज, मुझे काइंडली एक ये अलाउ कर दें कि जो मेरे प्रीवियस टास्क थे लाइव सेशन, जो सेसमी और चैट जीपीटी के साथ जब मैंने बात की थी, तो वहां पे वॉइस का जो इशू आ रहा था, तो उनको मैं मैं अगर डाउनलोड करके भी इधर अप्लाई करूं तो वो वर्थ इट तो नहीं होंगे। तो वो मुझे अलाउ कर दें कि मैं उसको जो है वो छोड़ दूं, उससे आगे वाले टास्क जो है वो अपलोड कर दूं, वो मैं कर दूंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप उनको काउंट कीजिए कि आपने उन पे एफर्ट की है, आपने टाइम दिया है। हम आपके जी। टाइम को, आपके एफर्ट को बिल्कुल एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसमें आप परेशान नहीं हो, लेकिन गो विद इट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम आज मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी, मेरी भी वॉइस नहीं आ रही थी उसमें। मिस लुबना, अब बताइएगा इनकी क्यों नहीं आ रही थी। इशान, आप अपना ब्राउजर चेंज करें।
दूसरे ब्राउजर पे जो है वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरा ब्राउजर का इशू आ रहा था। जैसे ही मैंने ब्राउजर शिफ्ट किया तो वो इशू रिजॉल्व हो गया। और नीचे जब आप शेयरिंग करती हैं स्क्रीन को, तो वहां पे टैब में आता है वो टॉगल ऑन कर दें, शेयरिंग वॉइस वाला। अगर वो ऑलरेडी ऑन है तो फिर ब्राउजर चेंज करें, ये इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है। अगर आप गूगल यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करके देखो, अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो तो गूगल यूज करके देखो। ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना है शायद कि आपने स्टीम यार्ड को जिस ब्राउजर में यूज कर रहे हो ना, सेम ब्राउजर में ही आपने अपनी जो है वो कॉल एनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जिस भी आपने यूज करना है ना एआई टूल को, उसकी टैब भी सेम ब्राउजर में ओपन होना चाहिए। अब अगर ये करेंगे कि आप स्टीम यार्ड यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एज पे, और आपने परप्लेक्सिटी खोला हुआ है अपने गूगल पे, तो भी वॉइस नहीं रिकॉर्ड होगा उसका। मैम नहीं, लेकिन मैं तो जूम के थ्रू रिकॉर्ड करी थी ना। ओके, तो मैं क्या। पहले मैं, अच्छा आप जूम से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो जूम से रिकॉर्ड करते हुए भी ये बात ख्याल रखनी पड़ती है बेटे, जब हम जूम से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक हम बात कर रहे होते हैं ना आपस में, वो ठीक होता है, लेकिन जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो राइट साइड पे ना लिखा आता है शेयर साउंड। वो जो आपका लेआउट होता है ना, ठीक है, यस उसके नीचे यस। तीन छोटे छोटे स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है, उन पे चेक लगाना एक पे जरूरी होता है, जो कि शेयर साउंड का होता है। जब तक आप वहां से शेयर साउंड नहीं करते ना, तब तक आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस जिस भी एआई टूल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी कैन लिसन यू, और आप उस एआई टूल को आराम से सुन रहे हैं और आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है। लेकिन जब आप उसको रिकॉर्डिंग के बाद सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। और रिकॉर्ड ना होने की रीजन ये था कि उसका जो आपने स्क्रीन शेयर करते हुए साउंड शेयर का टॉगल था वो ऑन नहीं किया, उसको चेकलिस्ट को चेक नहीं लगाया। अगर आप चेक लगा देते तो ऑटोमेटिकली उसका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, वो जो एक मैंने वीडियो शेयर की ना ग्रुप में, आई थिंक 2 बार शेयर हो चुकी है जूम की रिकॉर्डिंग की, उसको एक बार देख लीजिएगा। और जब आप कर रहे हो जूम से रिकॉर्डिंग, तो उसको साथ में ओपन करके रखिएगा, ताकि आप साथ साथ उस प्रोसेस को फॉलो कर ले, तो काफी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जी आसिफ भाई। मैम मैंने फेसबुक पे वीडियो जो है वो बनाई थी रिव्यू के लिए, वो फेसबुक से रिमूव कर दी गई है, वायलेशन आ गया, पता नहीं क्यों। समझ ही नहीं आई क्या बोला आपने। मैंने फेसबुक पे रिव्यू वीडियो बनाई थी, तो हाँ हाँ। फेसबुक ने मेरी वीडियो रिमूव कर दी है, वायलेशन आ गई। अच्छा, ये सबके साथ होगा। फेसबुक 30 डेज के लिए आपके लाइव सेशन है उनको रखता है, 30 डेज के बाद उनको रिमूव कर देता है। इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब देखें, आप मुझसे कहेंगे कि मैंने फेसबुक पे काम किया मिस मरियम, वो रिमूव हो गया। उसका एविडेंस ये है कि आपने सेम डेट पे वही काम अपलोड किया अपने लिंक्डइन पे, वही का टास्क अपने जो जो इंटरव्यू कंडक्ट किया या कोई भी अपना सेशन कंडक्ट किया, ठीक है, उसको आपने उसी लाइव को आपने अपडेट किया अपने इंस्टाग्राम पे, उसी लाइव को अपडेट किया यूट्यूब पे। तो जो एक एविडेंस आपका फेसबुक ने रिमूव किया, वो 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एट अ टाइम मौजूद है। तो फिर आप ये, मैं ये नहीं मानूंगी कि ठीक है आसिफ भाई ने किया था और वो रिमूव हो गया। भाई अगर रिमूव हो गया था, बाकी 3 प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं पड़ा हुआ? तो महीने के बाद रिमूव होगा ना, ये तो अभी रिमूव हो गया 10 मिनट में। मैम इनका कॉपीराइट आया है, कॉपीराइट आ गया। इनका कॉपीराइट आपने है रील इन्होंने। किया तो कॉपीराइट आया है? जी जी, कॉपीराइट। मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था, वो भी है मेरे पास। आपने स्क्रीनशॉट लिया था तो स्क्रीनशॉट जरा मुझे शेयर कीजिएगा। जी जी सर। ओके। ये पहले तो नहीं है, लेकिन अब इस वीडियो पे आ गए। शायद मेरी पोस्टिंग में कोई गलती हो गई है। नहीं, वैसे फेसबुक पे तो कोई कॉपीराइट के क्लेम्स नहीं आते, फेसबुक तो बड़ा अच्छा है। कॉपीराइट के क्लेम तो यूट्यूब पे आते हैं। बल्कि अब तो ये यूट्यूब भी पता नहीं इतना क्यों अच्छा आ हो रहा गया, है। वो भी कॉपीराइट से नहीं दे रहा। आप जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं माशाल्लाह से, आप लोग और बाकी, आप उनकी जो फेसलेस वीडियोज है वो तो बड़े आराम से अपलोड हो रही हैं। एट टाइम्स व्हेन वी स्टार्टेड दिस थिंग, जब हमने इसको स्टार्ट किया था, एंड वी फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, कि हमें हमारे बच्चे फेसलेस वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे थे यूट्यूब पे। यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट था कि वो कैनवा की वीडियो को भी कॉपीराइट क्लेम में डाल देता था। आप लोगों को तो वो कुछ नहीं कह रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब की जो पॉलिसीज है वो चेंज हो गई, ठीक है, और अब यूट्यूब थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि उसकी स्ट्रिक्टनेस कम हो गई, इस वजह से वो अलाउ कर रहे हैं। वरना शुरू में हमें बहुत सारे फिल्टर्स लगा के वीडियो बनानी पड़ती थी, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती थी, और उसके बाद फिर वो वीडियो इनेबल होती थी कि हम किसी यूट्यूब पे जाके उसको अपलोड कर सकते। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया मैंने।
चले, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ आपकी बात। जी मिस लैला, व्हाट्सएप आपका हैंड पे रेज। शेयर कर दी मैंने। चले ठीक, मैं 1 मिनट में देखती हूँ। मैम मैं वैसे तो एक्टिव सुन रही हूँ सारी जो है हमारी क्लास हो रही है। मैंने पहले भी कोशिश किया है, एक तो 10 मिनट इसीलिए मुझे लेट हो गया। मैं बार बार कनेक्ट करती थी क्लास को तो डिस्कनेक्ट हो जाता था। मुझे फिर पता चला ये कैमरे की वजह से हो रहा है। फिर मैं इंशाल्लाह ये बैठ के डिटेल से इसकी सेटिंग को देखूंगी, लेकिन अभी अगर मैं कैमरे पे वर्क करती हूँ मेरी क्लास मिस हो जाएगी। ओके ओके ठीक है। होना नहीं चाहिए था वैसे ऐसा। खैर, आपके पास ये रिकॉर्डेड पड़ा है ना आपका रिव्यू, आसिफ भाई, या लाइव था? ये लाइव था, रिकॉर्डेड नहीं है। बस फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि वो लाइव रिमूव कर देता है फेसबुक, क्योंकि मैंने बताया था कि 2025 फरवरी से फेसबुक की पॉलिसी चेंज हो गई। वो क्या, फेसबुक ने कहा कि मैं 30 डेज ओल्डर जितने भी लाइव सेशन है वो रिमूव कर दूंगा। दिस इज द रीजन कि हमें फिर अपनी जितनी भी क्लासेस हैं उनको बैकएंड पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो फिर अगले दिन या 1 2 हफ्ते बाद क्लेम करते थे, अच्छा मेरा फलाना टास्क रह गया, मुझे वो क्लास दे दे। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि मैं यूट्यूब पे जाके देख लो, वहां पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे नहीं मिलेगी अब। ठीक ये है, मिस लैला तो ने हमारा एक बात बहुत मुझे सारा बताई कंटेंट थी। भी डिलीट हो गया और हमारे चैनल्स पे भी डिलीट हो गया। तो जैसे मैं अगर अपने बहुत सारे इंटरव्यूज की बात करूँ तो मेरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था जो कि मैंने फरवरी आई गेस 13 या 16 को किया था, और उसपे सरेहान के बड़े स्पेशल कमेंट्स थे जो कि मुझे फॉरवर्ड करने थे दौरा साहब को, तो वो डिलीट हो गया। एंड मुझे आफ्टर आई गेस 2 वीक्स के बाद उन्होंने मुझे कहा नहीं, मुझे वो कमेंट दिखाओ कहाँ सरेहान का वो कमेंट था। तो आई डोंट हैव एनी प्रूफ, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। एट दैट टाइम उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, और सब बाकी जितने भी मेरी टीम है उन्होंने भी वो कमेंट्स देखे। लेकिन वही बात कि जब वो चीज मैंने उनसे कही तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले प्रूफ दिखाओ, तो फिर मैं दूंगा। खैर नहीं हाँ, लेकिन वो बात हमारी हो गई। और लेकिन मैं सीरियसली शेयर करी कि वो 2 वीक्स के बाद उसने रिमूव कर दिया, हालांकि मुझे उसने कहा था कि मैं 30 डेज के बाद रिमूव करूंगी। तो ये फेसबुक की पॉलिसी है कि लाइव सेशन रिमूव हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ और हम सब आपसे कह रहे हैं कि आप अपना बैकएंड किस तरह प्रिपेयर करेंगे और किस तरह सेव करेंगे कि आप अपने ही इंटरव्यूज को अपलोड करना शुरू कर दें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो जब हम एक मीडिया पे गायब होते हैं या हमारा वो लाइव नहीं जाएगा, तो बाकी 3 सोशल मीडिया इसके एविडेंट हैं कि भाई हाँ, आसिफ भाई ने इस डेट पे ये सेशन लाइव किया था। अब ये रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं उनके लिंक्डइन पे, उनके इंस्टाग्राम पे और उनके यूट्यूब पे। ठीक है, ठीक। चलो, बहुत शुक्रिया। जी मिस सोलर। बस आज हमारे स्कूल में भी एक बच्ची है, उनके साथ यही हुआ। उन्होंने फाउंडेशन लेवल अपना जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था, उनके सारे इंटरव्यूज हो गए थे, लेकिन आज अचानक वो रोती हुई आई कि मेरे सारे इंटरव्यूज जो है वो डिलीट हो गए फेसबुक से। वही 30 दिन उन्हें लाइव किए थे सारे। तो अब मिस हम उनको सर उनको गाइड कर रहे थे कि आपको और प्लेटफॉर्म्स पे इनको इनकी रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए, तो उन्होंने नहीं की थी। तो उनके साथ आज यही इशू हुआ। फिर आज उनको जो अपने सारे टास्क थे वो अब उनको दोबारा से करने पड़ेंगे। उनका लेवल 1 आज क्लियर होना था, वो नहीं हो सका इसलिए। तो यही हो रहा है कि 30 डेज में आज हम बच्चों को यही स्कूल में बार बार गाइड कर रहे थे कि आप लोग यूट्यूब पे और इंस्टा पे और लिंक्डइन पे लाजमी डालेंगे, वरना 30 डेज बाद आपको उनकी ना रिकॉर्डिंग मिलेगी ना कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये उनके साथ यही हुआ है। आज जो है ना फिर वो उनके सारे इंटरव्यूज डिलीट हो गए। बेचारे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करे। और खैर लेकिन सेफ साइड के लिए इसीलिए आपकी गूगल शीट का डिजाइन ऐसा है कि आप सबको रिमाइंडर के तौर पे याद रहे कि भाई मुझे लिंक्डइन पे भी हर टास्क अपलोड करना है, मुझे अपने इंस्टाग्राम पे भी करना है और अपने यूट्यूब पे भी करना है। ठीक है, ताकि हर प्लेटफॉर्म आपके लिए आपके बैकअप को खुद जो है वो आपके लिए मेंटेन करेगा। दूसरी बात, आप सब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अभी से करना शुरू कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो लेटर ऑन फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि अच्छा कहाँ से शुरू करूं,
कौन सी चीज पहले अपलोड करूं कि दूसरों को पता चले कि अहमद मुस्तफा भी कोई काम कर रहा है, कोई चीज कर रहा है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर आनी चाहिए। और फिर मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं अब क्या ऐसी पहली चीज लगाऊं कि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकूं। तो जो ऑडियंस हम ग्रैब नहीं कर पा रहे ना, तो जब आप ये थोड़ा थोड़ा काम अपलोड करना शुरू करेंगे, एक तो आपकी हेजिटेशन दूर होती है, दूसरा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अथॉरिटी जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाती है। आप अपने यूट्यूब पे भी नजर आते हो, आप अपने इंस्टाग्राम पे भी नजर आते हैं, आप अपने लिंक्डइन पे भी नजर आएंगे, आप अपने फेसबुक पे भी नजर आएंगे, तो लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ग्रेजुअली एंड स्लोली जब आप 2 महीने के बाद अपना कोई भी नया प्रोडक्ट या अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक निश में एक्सपर्ट बनाने जा रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे आपको याद आएगा कि ये जो 2 मंथ्स की जर्नी थी ना, इसने आपको ये हेल्प आउट कर दिया कि अब आपको ना तो कैमरा शाइनेस है, ना ही आप किसी चीज में आप डाउटफुल हो कि अच्छा मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं क्या करूं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा आपकी ऑडियंस कौन सी है और आप किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है। उसी चीज को यूज करते हुए अपनी जो स्किल है उसको पॉलिश करना शुरू करते हैं, अपनी वो जो आपने अपने लिए पाला सेलेक्ट किया उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 महीने के बाद पता चलता है कि मैं ग्राफिक्स में बहुत अच्छी हूँ, मुझे कैनवा करने में बहुत मजा आता है, और मुझे कैनवा के डिजाइन और कैनवा के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनकी डीप डिगिंग करने का, रिसर्च करने का बहुत मजा आता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी ट्रेनिंग के पोस्टर्स, ट्रेनिंग के जितने भी रिलेटेड जो होते हैं, जो ट्रेनिंग के रिलेटेड पोस्टर्स हैं, डिजाइन्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत कुछ है कैनवा के अंदर बनाने को, और थंबनेल्स हैं, मैं उनको बनाना शुरू कर दूंगी। और ग्रेजुअली एंड स्लोली क्या होगा कि मैं इसी सर्विस को अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी फेसबुक पे, अपनी यूट्यूब पे और अपने लिंक्डइन पे जो है वो सेल करना शुरू कर दूंगी। और उससे क्या होगा, एक तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग होनी शुरू होगी, दूसरा मुझे पता चल गया कि अच्छा 2 महीने के अंदर मुझे इस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया था और मैं इस चीज में थकती नहीं थी, इस चीज में मुझे और मजा देता था कि मैं और काम कर सकूं। जहां दिन में मैं 5 कैनवा पोस्ट बनाती थी, अब मुझे दिन में 10 भी बनवा लो तो मैं बहुत आराम से बना लूंगी और इजी टू गो है मेरे लिए। ठीक है। इसी तरह किसी को समझ आएगा नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ मेरी तरह, तो वो सोच सकता है अच्छा मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मैं दूसरों को डिलीवर बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो वो छोटी छोटी चीजों के रिव्यूज बनाना शुरू कर दे जो कि आपकी मॉरल वैल्यू से रिलेटेड हो, जो कि और स्पेसिफिकली वो आपकी नीश के रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैं ब्रांडिंग वाली हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं लोगों को अब क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूं कि मैंने अपनी ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, मैंने मार्केटिंग स्किल्स किस तरह से इंप्रूव करनी है। किसी का स्टार्टअप है तो उसकी बिजनेस के लिए उसकी कौन सी मार्केटिंग स्किल्स जो है उसको इनहेंस करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने करनी है। अब प्रॉब्लम नहीं है कि शुरू कैसे करूंगा, मैं कहाँ से लाऊं कंटेंट, तो भाई चैट जीपीटी पे जाओ, उसको जाके बताओ कि मेरा नाम अहमद मुस्तफा है, मैंने ये काम किए हुए हैं, अब मुझे जो है वो स्पेसिफिकली मार्केटिंग वाला पे काम करना है, तो मुझे एक यूट्यूब की वीडियो बनानी है 5 मिनट की, उसका कंटेंट दे दो मुझे, ताकि लोग मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से सुने भी और उसकी बुक लाइन भी मुझे दे देना। वो आपके लिए बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिख देगा, आपका स्क्रिप्ट लिखने का काम भी उसका, आपको वीडियो की गाइडलाइन भी देनी उसकी, आपने बैठ के सिर्फ 10 मिनट बोलना है, और उस बोलने में आपकी जैसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। अब बाकी के काम आपका चैट जीपीटी ने आपके लिए कर दिया। अब आपको थोड़ा सा काम दूसरा ये करना है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको थोड़ा सा इनहेंस कर लीजिए किसी कैपकट के थ्रू, कैनवा के थ्रू, ताकि उसके अंदर आप डिफरेंट एडिटिंग कर ले। ठीक है। और वो अब इंशाल्लाह जब हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट होगा तो हम सीखेंगे कि हम अपनी वीडियो को किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इनहेंस करना शुरू करेंगे। तो फिर आपके लिए काफी सारी चीजें और आसान हो जाएगी कि मैंने अगर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड है, तो मैं अब उसको कैसे इनहेंस कर सकता हूँ कि अच्छा मैंने ये मार्केटिंग के रिलेटेड टिप्स दी हैं, अब वो टिप्स लोग मेरी सुनेंगे कैसे, कौन सी ऐसी चीजें जो मैं वीडियो में ऐड कर दूं तो सामने वाले के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है। तो ये हम ग्रेजुअली एंड स्लोली साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ बार बार ये बात इसलिए बता रही हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक तो रिक्वायरमेंट है आपके इस कोर्स की, क्योंकि जब तक आप चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे तब तक एक तो सर्टिफिकेशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माजरत के साथ, लेकिन ये कंपल्सरी है। साथ ही साथ हम आपको सिर्फ ये इस चीज के कैपेबल कर रहे हैं कि भैया आप सब, मेरी बहनें, मेरे भाई बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स को सुनने में आया है कि उन्होंने कभी लिंक्डइन यूज ही नहीं किया, कुछ ने जो है वो इंस्टाग्राम कभी यूज ही नहीं किया, उसने कभी ये नहीं यूज किया था कि अच्छा मुझे फेसबुक पे मैंने इतनी अच्छी फैमिली बना ली, मुझे वो इंस्टा पे बनानी चाहिए थी और मैं जल्दी ग्रो कर लेती।
तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब हम करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। आसिफ भाई क्या कहना है आपको? मैं इसी क्लास में था कि जैसे आपने बताया कि हमें कहाँ जाना है, कैसे रास्ता बनाना है, कहाँ से शुरू करना है, ये हमें नहीं पता है। ये हम्म हम इस फील्ड में इसलिए है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सी फील्ड में काम करना है, हम्म तो ये कैसे पता लगेगा हमें। जैसे मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट बनना है, फ्रीलांसिंग विथ एआई मुझे करना है, तो मैंने अपने साथ आसिफ एआई वाला लगाया है। फिर मैं कैसे हम्म स्टार्ट करूंगा एआई को साथ लेके फ्रीलांसिंग। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है मेरे भाई। और यही क्वेश्चन जो मुझसे पूछा ना, ये चैट जीपीटी से रोज पूछा करो 10 मिनट, वो आपको इतने वेज बता देगी कि आप खुद भी हैरान होगे कि आप कैसे अपनी फ्रीलांसिंग विद द हेल्प ऑफ एआई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद चैट जीपीटी को बहुत यूज करती हूँ और उसी से सारे सवाल पूछती हूँ। आपके सवाल भी उसी से जाके पूछूंगी कि मुझे बता दो आसिफ भाई ने ये पूछा है, मैं कैसे अब उनको जवाब दूँ। ठीक, तो अगर ओके। आप खुद पूछोगे ना तो आपको ये बताएगी कि आसिफ क्या सोचता है, आसिफ रोजाना मुझसे किस तरह बात करता है, तो वो आसिफ के अकॉर्डिंग जवाब देगा। मरियम पूछेगी तो वो मरियम को ट्रेनिंग और इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर जवाब देगी। ठीक है, तो मैं तो ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से सारे सवाल करती हूँ। आप अपने एआई को मर्ज करके फ्रीलांसिंग के साथ कैसे उसको ऐड ऑन किया जा सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है, वो आप उससे पूछे, वो आपको जरूर जरूर डे टू डे गाइड करता रहेगा। ठीक है ओके। जी। फारूक भाई। जी आपने ये जो भी एक्सप्लेन किया ना ये आज इस इत्तेफाक से यही मेरे माइंड में भी चल रहा था कि देखिए बाज लोग होते हैं फ्रेश, ठीक है ना, वो लोग स्टार्ट करेंगे ना, वो जो भी इस तरह की इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं या स्टफ है वो उसको पहली दफ़ा बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसको पोस्ट करेंगे तो उनको यकीनन अप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन पीपल लाइक मी एंड यू एंड पीपल समथिंग दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, तो उनके लिए जो है ना जब वो पहली दफ़ा ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया में तो हमारे भी अपीयरेंस फॉर 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 मी टू मी एज वेल फर्स्ट टाइम ही है ना, तो वो बड़ी नोवाइस लेवल की हो। तो जब ऐसी सूरत होती है ना तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले। अगर आप जैसे कि मैंने बाज़ वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट की हैं, ठीक है ना, दैट लुक्स आई मीन ऑकवर्ड, यू नो व्हाट आई एम इन रियल रियल लाइफ। तो मैं ये सोच रहा था कि टिल द टाइम कि मैं रियली उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए, एक्सपर्ट ले लूँ, मैं उसको एटलीस्ट पब्लिक ना करूँ, ठीक है ना। वो हमारे पास एक हमारा ग्रुप होना चाहिए जिस पर जो है हम पोस्ट करें और उसके ऊपर कमेंट्स लें और उस पर हम प्रैक्टिस करें। देन बाय द टाइम जब हम लेवल सेकंड पे आए या सेकंड मंथ में आए तो फिर यकीनन हमें जो है वो हम जरा पॉलिश्ड हो जाएंगे, और जब हम अपनी सोशल मीडिया को पे के ऊपर जो अपीयरेंस आएगी तो वो रिलेटिवली बेटर होगी, और तो मतलब हमें मज़ेगा खेज किस्म के लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो उनके इमेजेस आ रहे हैं वो सहने नहीं पड़ेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक अ ग्रुप लाइक दिस, इसमें हम ये प्रैक्टिस करें पहले, और उसके बाद फिर हम अपनी स्पेशली दोज हु आर रियली एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन प्रोफेशनल लाइफ, तो वो ये थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सबके लिए पब्लिक ना करो। अच्छा फारूक सलीम भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहली चीज यही है जो मैंने बहुत पहली क्लास में भी गाइड की थी कि सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ना है, और वो यही लड़ना है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं और हर पहला कदम छोटा ही होता है। आप एकदम से बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाएंगे, सब पहले कदम पे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं और फिर गिर के उठ जाते हैं। तो जो पहला कदम है ना वो सबके लिए पब्लिक होना इसलिए जरूरी है ताकि हर किसी को याद रहे कि कोई भी एकदम से जो है वो सुपरस्टार नहीं बन गया था, कोई भी एकदम से सेलिब्रिटी नहीं बनता। हर किसी की एक स्ट्रगल लाइफ है और वो स्ट्रगलिंग लाइफ हर किसी के सामने आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप अपनी पहली वीडियो को पब्लिक कर देंगे ना तो आप पता नहीं 10,000 लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि अच्छा, अगर फारूक सलीम भाई के पास इतने कम रिसोर्सेज थे और उनको ये भी नहीं पता था कैमरा का एंगल कैसे सेट करते हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने वीडियो के अंदर बोलना किस तरह से है, उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना था, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाई, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? मैं भी तो ये काम कर सकता हूँ ना। अगर फारूक सलीम भाई ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज। दूसरी बात यह है कि ये आपको याद दिलाती रहेगी
जब भी आप किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने लगेंगे ना, तो आपको हमेशा उस अपनी पहली वीडियो पे प्राउड फील होगा कि अच्छा, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने किस तरह से शुरू किया था। अब मैं सामने वाले को गाइड कर रहा हूँ ना, तो मुझे याद रखना चाहिए कि उसका भी आज पहला दिन है। तो जिस पहले दिन तो मैं बहुत घबराया था, मैं बहुत डरा था, और मैंने कैमरा को फेस करने के लिए 10 बार रीटेक लिए थे, आज वो भी रीटेक लेगा। तो मुझे बजाय इसके कि उसको बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मैं उसके साथ रखूं, मुझे बहुत लो टोन में रह के उसको गाइड करने की कोई बात नहीं। जाओ जाके ट्राई तो करो एक बार, और वो ट्राई ही सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना हर कंटेंट जो है उसको पब्लिक ही रखेंगे, इसको प्राइवेट नहीं रख सकते। ठीक, क्योंकि हमने ये देखना है, जब मैंने पहले दिन शुरू किया था वो, और आज 8 हफ्तों के बाद क्या डिफरेंस आया मेरे अंदर, क्या पर्सनैलिटी चेंज है जो कि पब्लिकली मैंने फेस किया। तीसरी बात, जब तक किसी का क्रिटिसिज्म नहीं आएगा ना, आप कभी भी खुद को ठीक नहीं करते। आपको हमेशा लगता है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और कोई हो ही नहीं सकता मेरे अंदर गलती। लेकिन जो क्रिटिसिज्म आता है ना, मतलब क्रिटिसिज्म फॉर शेक ऑफ क्रिटिसिज्म भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर क्रिटिसिज्म को जरूर सुने और उसको जरूर जो है आपने बैठ के पॉन्डर करना है और आपने उसके बारे में सोचना है कि नहीं नहीं, अच्छा इसने ये कहा तो मैं ये क्यों करूँ। ट्रस्ट मी, मैं लाइव इंटरव्यू कर रही होती थी और ऐसी ऐसी इल मैनर्ड कमेंट्स आते थे कि मुझे लाइव इंटरव्यू में मेरा बस नहीं चल रहा होता था, या तो इंटरव्यू बंद कर दूं या जाकर फौरन से वो कमेंट रिमूव कर दूं। पर आई हैव टू कंट्रोल। द सेम वे, आपको हर किसी के जवाब में थप्पड़ नहीं मारना, अपने हर किसी को मुड़ के जवाब नहीं देना। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी उस बुलंदी से आपको और ज्यादा बुलंदी पे पहुंचाना चाह रहे होते हैं, और वो हमें पता नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, बहुत पेशेंटली रहते हुए हर एक को सुनते जाएं और करें वही जो आपको ठीक लग रहा है, बस। आपने अपने सीधे करने से नहीं डरना। आप जो कर रहे हैं ना, सरहान कहते हैं जिसको जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है ना, वो समझ ले कि वो सीधे रास्ते पे है, और वो कुछ कर रहा है जो दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन वो इंसान कर रहा है, इसलिए उसको ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो जिस दिन आप ये समझेंगे ना कि मुझे जितना भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या मुझे कोई भी सामने वाला जो है वो मुझे किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ये चाहता है कि मैं और बुलंद जाऊं, बस। तो जितना पॉजिटिव नोट पे रह के और पॉजिटिवली इन चीजों को एक्सेप्ट करते जाएंगे, चीजें आसान होती रहेंगी। और अगर हम पहले ही कमेंट पे डर जाएंगे और बैठ जाएंगे, फिर हम हमेशा ही डरेंगे। हम किसी को ना तो खुद मोटिवेट कर सकते हैं और ना खुद मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज, और परफेक्ट कोई भी नहीं होता। मैं बार बार यही कहती हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं है। स्टिल आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक। अभी मैंने कर ली यहाँ पे आपके सामने एक वो ईडीएम बोला और मैंने वो गलत बोला, और आधे घंटे के बाद जब मैं वहां पे मीटिंग में गई, मैं मीटिंग में बैठ के इसको सोच रही थी, अच्छा ये तो मैंने गलत बोल दिया, ये तो ऐसे नहीं ऐसे बोल रहा था, अरे डेड डेड। अब वो वापस नहीं आ सकता था, लाइव वीडियो में भी चला गया, रिकॉर्डेड में भी सबने सुन लिया। अब क्या कर सकती हूँ। लोग कमेंट में लिखेंगे मरीम की इंग्लिश गलत है, इसकी इंग्लिश ठीक करा दो। आपने कैसे फैसिलिटेटर रखे हुए हैं जिसको इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती। भैया, गलतियां सब करते हैं, हो जाती है गलती, बोला क्या गलत, अब अगली बार मुझे याद रहेगा कि मैंने गलत को इस तरह से की। ठीक है, तो हर गलती को सबसे पहले एक्सेप्ट करें और उसके बाद उसको बेहतर करें, बस। जी आजम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये जो बात आप कर रही हैं बिल्कुल इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, मैं जो इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपके साथ अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो ये जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बेसिकली मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जो है ना वो इस चीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए मुझे आप लोगों के साथ जो है ना वो जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये अपने लिए समझता हूँ। ठीक है, और उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो चीज़ मुझे बताई जा रही होती है उसको मैं अंडरस्टैंड करके जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करने की भी जो है ना वो साथ साथ कोशिश करता जाऊं। तो आज की अगर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं जी कि जी प्लीज। अ, मैं स्कूल अपनी बेटी के गया, तो उनकी प्रिंसिपल से मैंने जाके जो है वो मुलाकात की, और उनको मैंने ये कहा कि जी आपके स्कूल के अंदर जो है वो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि कोई इस तरह की जो है वो
एक्टिविटी जो है वो मैं स्टार्ट करूं। और एआई के हवाले से कि बेसिकली हम लोग जो है वो मतलब मेरे हवाले से मैंने उनसे ये बात की कि हम लोग बेसिकली जो है वो ट्रेनिंग देते हैं टूल्स के ऊपर जो है वो काम कैसे करना है। और इन टूल्स को अगर हम लोग सिखाएंगे आपके बच्चों को जो इधर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आप बेशक हमें वीक में एक दिन दे दें इस चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर जो है वो इस चीज़ को आप एक दिन के लिए जो है वो ऐड कर लें। और मंथली जो है वो हम लोग जो है वो 4 क्लासेस जो है वो दे सकते हैं। तो मैं जो है वो रेहान स्कूल से जो है वो उनसे मेरा ताल्लुक़ है। और वो टीम है जो ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो उन्होंने मुझे कल का टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी हम्म, आप जो है वो आइएगा हमारे पास, तो हम लोग इसके ऊपर जो हम्म, है वो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो स्कूल्स जो है वो ये चीज़ देख रहे हैं। और इस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करने के लिए मुझे जैसे आप हैं, नसीम साहब हैं और लोग हैं एज अ फैसिलिटेटर भी काम कर रहे होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि ये जर्नी जो है वो मैं आगे मज़ीद आप लोगों के साथ जो है वो कंटिन्यू करूँ और इसी मिशन को लेके आगे चलूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम अप टू। बहुत शुक्रिया आजम भाई। और बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके लिए मैंडेटरी यही है कि सबसे पहले आपको लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करनी है, और उसके बाद हमारे साथ लेवल 2 की ट्रेनिंग में आप ऐड ऑन हो सकते हैं। अब उसमें ये है कि आपको जो है वो लेवल 2 की ट्रेनिंग में आपको 2 आवर्स की लेवल 2 की ट्रेनिंग करनी होती है, और साथ में 2 आवर्स का फिजिकल जो प्रैक्टिकल हमारी चीजें हैं, हमारी क्लासेस हैं, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आप जो है ग्रेजुअली एंड स्लोली इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनते जाएंगे। और फिर उसके बाद लेवल 3 है, टिल लेवल 6 आप जो है वो पूरा एक मास्टरपीस जो है वो इस रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। और फिर आप जो है वो सारी चीजें जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। मैं आज हमारी जो वेबसाइट है रिहानी आई टीचर इंस्टीट्यूट की, उसका लिंक आपके इस ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो कि हमारा बैच 11 का है। आप सब उसको पढ़ लीजिएगा, सब उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। और इंशाल्लाह मे बी जस्ट इन 2 और 3 डेज एक बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी, जो कि सर रेहान अल्लाह वाला की है। और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन भी उस वीडियो में वो आंसर करने वाले हैं, आप बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर कर देंगे। बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगेगा वो वीडियो रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी, डेफिनेटली आई विल कम्युनिकेट विद ऑल, ताकि आप सब उस वीडियो को देख सकें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप एक्सप्लोर करें, उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें आपके काम की भी होंगी, बहुत सारे हो सकता है आप सवाल पूछना चाह रहे हो, तो वो सवालों के जवाब वहां पर डायरेक्टली आपको मिल जाए। तब तक के लिए सिर्फ अपनी वेबसाइट है, आप वेबसाइट को देख लें, उसके अंदर 6 लेवल्स हैं, उनकी सारी जो भी एक्सपर्टीज है वो सब कुछ विल गिव रिव्यूज। बिल्कुल ठीक है, आप जरूर दीजिएगा, और आप हर चीज में रिव्यू बनाए। आज मैं आप सबको एक और चीज बताती चलूं कि जो ये समझता है ना कि मुझे अपनी बात जरूर कहनी चाहिए और मुझे अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करना चाहिए, उनके लिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे रिव्यूज की ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है, और ये बहुत बड़ी नीश है। आप किसी भी छोटी चीज को भी देख के उसका अपना अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं, दैट्स योर रिफ्लेक्शन, योर रिव्यू, कि आपने क्या सीखा, आप किस तरह से उस चीज को परसीव करते हैं, और आप सोसाइटी को क्या जो है वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। आप उसके बारे में अपने जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं, अपने रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। और इसको जो है वो रिव्यूइंग ऑफ एनीथिंग कहते हैं, मतलब आप बुक का रिव्यू कर सकते हैं, आप मूवीज के रिव्यूज कर सकते हैं, आप किसी की वीडियो देखते हैं, आप उसके कंटेंट को रिव्यू कर सकते हैं। मतलब आप उस पर अपना रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, आपका क्या स्कूल ऑफ थॉट है, आप वो शेयर कर रहे हैं। आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, आप उसके साथ एग्री भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी निश है। तो जैसे मैंने बताया ना कि हमें अपनी अपनी छोटी छोटी चीजें अब खुद आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने के बाद हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे क्या अच्छा लगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो जो चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है वो सारी इस पर्सपेक्टिव से कि आप लोग सब अपने आप को सेल्फ रिकग्नाइज कर सकोगे। दैट्स इट। और मैं जी ये चीज़ मसूद। पूछना चाह रहा था, सॉरी, बस एक छोटी सी और बात थी मैम। हम्म, ये देखें अभी तो मैं खुद जो है ना वो लेवल 1 में हूँ और ट्रेनिंग ले रहा हूँ और ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो उस तरीके से जो है वो अगर किसी से भी मेरी बातचीत होती है
तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मैं एक और जगह गया, तो उधर भी मैंने इसी तरह जो है ना वो अपना मोबाइल उनको दिखाया कि ये एक्टिविटीज़ हैं आजकल मेरी जो मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो आप भी जो है वो ये चीज़ कर सकते हो। तो अगर कोई अपना जो है वो सेटअप लगाना चाहता है, ठीक है, या कोई इस तरह की फैसिलिटी लेना चाहता है, तो जो मेरे सीनियर्स हैं वो क्या उन लोगों को एड्रेस कर लेंगे अगर मैं उनको डायरेक्टली फॉरवर्ड करूँ आपको तो? आदम भाई, सबसे अच्छा इसका तरीका यह है कि अगर आपने कोई भी काम विद रेफरेंस ऑफ रेहान फाउंडेशन करना है, तो आप रेहान फाउंडेशन के साथ जो है खुद भी कोलैबोरेट कर लें, और उन स्पेसिफिक जो भी आपकी वो पर्सनैलिटी है या इंडिविजुअल है उनको भी ऐड ऑन कर लें, ठीक है। ओके, यू विल ठीक बी है। द एम्बेसडर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेहान स्कूल सिस्टम, लेकिन वो हम्म। आपको, जैसे कि कहते हैं ना कि हमें कोई भी काम, अगर आपने मेरा कोई काम शेयर करना है, यू हैव टू जी, एक्चुअली आस्क मी टू कंसेंटमेंट ऑफ माई सेल्फ। आपको मुझे पूछना है डेफिनेटली। कि मैंने ये आपका काम करना है, तो क्या मैं आपकी कंसेंट इसमें शामिल है तो मैं कर लूं। अगर हम ये नहीं करते तो एक तो एथिकल कंसिडरेशन इसमें सबसे पहले ही लगेगी कि भाई आपने मुझसे पूछा नहीं और आप मेरी चीज क्यों इसको पब्लिक कर रहे हो, ठीक है। यस, यस। दूसरी बात, फिर वो लीगल प्रोसीजर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हम रियल और ट्रांसपेरेंट रह के कर ले, तो बहुत अच्छी चीज है। तो यस, यू ओके। कैन गो फॉर इट। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है ये काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। तो आप इसके लिए जो प्रिंसिपल साहब हैं दौलत एजुकेशन वाला, उनसे कांटेक्ट कीजिए और ओके, फिर वो आपको गाइड कर देंगे सारे। बेहतरीन बात है, बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी ओ, मच। बहुत शुक्रिया। जी मिस लुबना। जी मैम, एक तो सबसे पहले जो आजम भाई ने कहा बहुत अच्छी बात की। इंशाल्लाह लेवल 1 और लेवल 2 के बाद मैं अपने स्कूल में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और फरूक भाई ने जो बात की ना, उससे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड की थी अपनी फर्स्ट, तो उसके बाद जो मुझे पहला कमेंट मेरी कुलीग की तरफ से आया, हालांकि मतलब उनमें और मेरे में सीनियोरिटी का बहुत डिफरेंस है, मैं उनसे मतलब ज्यादा सीनियर हूँ, वो बहुत अभी जूनियर्स में आती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपको तो कैमरा ही फेस करना नहीं आता। मुझे बड़ी हंसी आई उनकी इस बात पे ना। बार बार उनका ना ये बात मेरे माइंड में आई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा कैमरा फेस करना, जिंदगी में हर काम पहली दफा तो करना ही होता है। तो उसके बाद फिर इतनी ज्यादा अब इम्प्रूवमेंट आ गई है कि अब मैंने अपना जो इंटरव्यू है उसको चेंज किया है। मतलब मेरे पहले वाले इंटरव्यू में और अब वाले इंटरव्यू की वीडियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और मुझे खुद भी फील हो रहा है। लेकिन वो मुझे उनकी बात याद रहती है, और मैं जब भी कैमरे के आगे बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अब मैं इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकती हूँ। तो मेरा पहला नेगेटिव कमेंट जो है वो मुझे लाइव दिया था एक मतलब कुलीग ने, जो हर वक्त मेरे साथ होती है स्कूल में। उन्होंने कहा मैडम आपको तो कैमरा ही फेस करना नहीं आता, और मुझे वाकई नहीं आता। ये फर्स्ट टाइम मैंने यहीं पे किया। तो ये बात है कि हमने वाकई जिंदगी में पहला काम जरूर, मतलब हर काम पहली दफा करना होता है, और उससे क्रिटिसिज्म को फेस करके ही आगे बढ़ना होता है। तो इससे कोई बड़े जो है वो चेंज नहीं आता कि कोई आपको क्या कहता है और क्या नहीं कहता। हमने बस जो करना है वो हमने करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिस लुबना। एक्चुअली अगर मेरे पास अपनी कोई पुरानी रिव्यू वीडियो होगी ना, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट, और अगर मेरे पास मेरे माशाल्लाह से इतने होनहार स्टूडेंट हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे शाहकार है मेरे कि वो पुरानी वीडियोस मेरी बहुत संभाल के रखी हुई है उन्होंने, और वो हमेशा मुझे भेजते रहते हैं कि आप पहले ऐसी थी और अब आप ऐसी हो गई हैं, आप हमें कहती हैं और आप पहले ये खुद ये सारे काम करती रही हैं। तो इट्स द थिंग कि आपको अपना पहला स्टेप खुद याद रखना होता है, ताकि आप किसी दूसरे को गाइड करते हुए उसको बताओ कि मैंने ये गलती किया है, प्लीज आप ना करना। अच्छा, मुझसे हो गया है, मुझे किसी ने सही से गाइड नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कैमरा एंगल अच्छा कर लेना, लाइटिंग अप्रोप्रिएट रखना, और सही से प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपना अटायर बहुत प्रेजेंटेबल रखना, क्योंकि बाद में जब आप बैठ के कभी 2 साल बाद 4 साल के बाद वो मेमोरी आपकी फेसबुक आपको शेयर करता है ना कि 1 साल पहले आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये आपकी मेमोरी है, तो आप सोचते हो अच्छा मैं लगाऊं कि ना लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं लगानी। अब तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, ये पहला रिव्यू में अगर अपलोड करनी भी तब क्या होगा। तो ये चीजें हमें मैटर करती हैं। तो उन सब ने वो मेरी पुरानी सारी चीजें संभाल के रखी है, तो जब भी वो मेरी बर्थडे या कुछ इस तरह के स्पेशल इवेंट रहते हैं तो वो वापस वही चीजें मुझे शेयर करते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला रिव्यू बनाया था ना, आई वाज हैव द कैमरा लाइक दिस। मेरा कैमरा बिल्कुल मेरी आंखों पे था, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कैमरे से पीछे करूं, एंड आई वाज वेयर द मास्क, और मैं मास्क पहनती थी, मतलब कि मुझे फेस कैमरा अपना फेस भी रिवील नहीं करना था, मुझे नहीं सामने आना था कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। और मेरी सिर्फ और सिर्फ आवाज आती थी, कोई नहीं पहचान सकता था कि ये मरियम है या कोई जिन है जो बैठ के बोल रहा है। लाइट भी इतनी कम होती थी कमरे के अंदर कि जैसे वो रात को आप समझ लें लाइट बल्ब ऑन करके हम सोते हैं,
वो वाली लाइट होती थी। अब मुझे 2 से 3 बार लाइव क्लास में मेरे मेंटोर रहमत पावंड वाला सर ने बोला, मिस मरियम आपकी ना लाइट ठीक नहीं है, आप अपना कैमरा एंगल ठीक कर रहे हैं, अपनी लाइट ठीक कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला कमरे की लाइट ही खराब है और अभी ठीक नहीं हो रही, एंड इट टेक्स अ मंथ। पूरा महीना मैंने उनके साथ ये जो है वो ये बात बोली, और फिर ये हुआ 1 हफ्ते के बाद वाकई लाइट खराब हो गई। मैंने कहा "अब झूठ बोला था", अब वो 1 हफ्ते के बाद पूरा काम। और फिर ऐसा हुआ कि अब बाबा को टाइम नहीं मिल रहा था लाइट चेंज करने का, वो लाइट चेंज की नहीं मेरे कमरे की। और पूरा महीना मैंने इसी तरह से वो काम किया। आफ्टर अ मंथ मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर ठीक है, वो उसी आवाज को भी उन रहमत एम्पावरमेंट वाला ने बहुत अप्रिशिएट किया, दौलत एजुकेशन वाला ने बहुत अप्रिशिएट किया, सिर्फ आवाज को कि अच्छा आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है बोलने में। और मैं ये सोचती थी कि काश कि मैं ये कैमरे पे आके बोल सकूं तो शायद कुछ और बेहतर हो जाए। बट इट टेक्स अ मंथ, और फिर 1 महीने बाद मेरा रिव्यू था लिटिल बिट बेटर, एंड नाउ इट्स द होल वर्जन ऑफ 1 ईयर 4 मंथ और 6 मंथ्स। अब आपके सामने जो बनी है ये पूरी 1 साल के बाद की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको नजर आ रही है। तो चीजें होने में बहुत टाइम लगता है और टाइम सबको लगता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी जर्नी भी बहुत अच्छी होगी, और इंशाल्लाह मैं एक दिन बैठ के सबको सुन रही होंगी। फारूक भाई बताएंगे मैंने कहाँ से शुरू किया और अब मेरे के अंदर क्या चेंज आया, मैं सेरम अपनी स्टोरी सुनाएंगी, जावेद भाई अपनी सुनाएंगे, इशार हमारी अपनी स्टोरी सुनाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग तो लगता है, लेकिन जिसने ये सारा प्रोसेस फुलफिल किया होता है ना, उसको जितने गूज बम्प आ रहे होते हैं ना ये चीजें बताते हुए, वो सिर्फ वही फील कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम सबकी स्टोरी सुनेंगे और बहुत जल्द सुनेंगे आपसे। जी मिस लैला, मुझे लगता है आज का मोटिवेशन लेक्चर ही हो जाना है, मजा मैम और करेंगे। मैं ना क्लास में बैठी थी और सर रिहान अल्लाह वाला की टेड टॉक सुनी ना, तो उसका रिव्यू देना था। छोटे बच्चे भी साथ बैठे थे और मैं उन सबसे छोटी थी जो मेरे हालात हैं फ़िलहाल। तो जो मुझे सर की सारी बात से उस टाइम जो मैंने रिज़ल्ट निकाला ना, कि स्कूल में बेसिकली जो एक मेन चीज़ है ना, अ, सारे ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट हैं पर उनमें एक ये भी बहुत मेन है जो मतलब मेरा दिल था कि मैं भी सर की टेड टॉक सुनी और अभी ज़रूर ऐड करूं कि बच्चों के अंदर क्या बड़ों के अंदर भी एक डर है। और सबसे पहले जब हम अपनी चीज़ पब्लिक करते हैं ना, क्योंकि देखिए हम फैमिली मेंबर में भी बहुत सारे लोगों का सामना नहीं कर पा रहे होते, हम अगर अपने आसपास जस्ट अपनी फैमिलीज को देख लें तो ये एक हमारा डर होता है कि हाय पता नहीं ये सही नहीं हुआ और वो क्या कहेंगे और ये क्या कहेंगे, ये जो है ना ये एक डर है। और सर ने यही बात की कि मेरा बच्चा हम लोगों ने अपने अंदर से डर निकालना है, सोशल होना है। जब डर निकलेगा, जब सोशल होंगे, जब हमारी जुबान, हमारी टाक, हमारी गुफ्तगू क्लियर होगी, जब हम सामने वाले को अंगेज कर पाएंगे, फिर हम बड़े बड़े छोटे छोटे तो जहाँ मैम रह गए, बड़े बड़े बिजनेस बड़े आराम से ले लेंगे, लोगों से टीम वर्क करेंगे। और ये चीज़ फिर मुझे और क्लियर हुई है। ये चीज़ मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी थी लेकिन एक प्रॉपर मैं वर्ड्स में बोल नहीं पास रही थी, लेकिन जब मैंने टेड टॉक सुनी तो मुझे फिर ये अच्छे से क्लियर हुआ कि ये चीज़ हमें इस साइड पे लेके जाएगी। और हमारे अंदर वो डर है असल में, जो हमें हमारी फैमिली के लोगों से भी बाद औक़ात हम घबरा जाते हैं। और ये तो ऑब्वियसली फेसबुक की बात कर लेंगे कि ये तो हर बंदे की मैम पहुंच में है। छोटा सा किसी ने पैकेज भी लगाया है ना सस्ता सा, तो फेसबुक बड़े आराम से खुल जाती है, उसने बनाई हुई है आम से बंदे ने भी। वो मतलब वो पढ़ा लिखा हो ना हो, आम से बंदे से मुराद अस्तगफिरुल्लाह कोई मैं सबसे कम हूँ। आम से मुराद यानी अगर वो कोई सोशल लाइफ नहीं जीना चाहता, फिर भी वो इसकी रील्स देखने के लिए चलें टीवी टाइप मैम, मैं इस वे में कह रही हूँ, तो वो उसको ज़रूर वो करता है। तो ऑब्वियसली जब हम पब्लिक जाते हैं ना, तो पहला जो वो हम बनाते हैं, मैं अपना तजर्बा मैं कहती हूँ कि आप मेरी पहली वीडियो जाके देख लें। मैं अभी भी वो रुक रुक के मैम बोल रही होती हूँ। थैंक यू सो मच, बस मैम यही मैंने शेयर करना। जी मिस गुलशन मौजूद, आपका हैंड रेज था फिर लो डाउन हो गया, आपको कुछ कहना था? सिमुला भाई 1 मिनट में बस आपको चांस दे रही हूँ, फिर मिस जी जी गुलशन जी करें। जी मिस, जैसे आप कह रही हैं कि आपका लेवल 1 जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपके सारे टास्क नहीं हो जाएंगे। तो मेरा तो लिंक्डइन मेरे लिए तो बैन है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सारी की सारी इस यहाँ से डिलीट हो जाती है तो फिर मैं यूट्यूब की तो अपनी एक पॉलिसी है ना, वो डाउनलोड अगर करता है तो डाउनलोड वो यूट्यूब के अंदर ही होती है चीज़। तो मैं लिंक्डइन पे फिर उसको किस तरह से मैं लगाऊंगी जब कभी ये ओपन होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये नहीं, सबसे था कि ये जो आज स्टोरी ये जो आज पोस्ट शेयर हुई है जो हमने बनाने की, पोस्ट नंबर 5 है ना, ये सिर्फ कंफर्म करना था मैंने। सही हो गया। अच्छा ऐसा है कि आपका
जो लिंक्डइन है वो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया था कि जो लिंक्डइन का आपका प्रॉब्लम आ रहा है आप अपनी गूगल शीट में उसको मेंशन कर दें, ठीक है। और ये लेटर और सूनर जब तक ये होगा नहीं इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन देखिए जिनके प्रॉब्लम नहीं है ना उनके लिए सबके लिए वैलिड है कि उन्होंने ये टास्क अपने हर जगह अपलोड करने हैं, ठीक है। हमने लिंक्डइन पे भी अपनी वो सब स्टोरी शेयर करनी है जो हम डे 1 से कर रहे हैं। जहां तक रही बात कि आपके टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपने बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया ना, जैसे आपने यूट्यूब पे कर दिया, इंस्टाग्राम पे कर दिया, तो आपका बैकअप फेसबुक का इंस्टाग्राम और यूट्यूब रख रहा है आपके लिए। और दूसरी बात जो आपने कहा था कि यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब में डाउनलोड होती है, वो तो वो वीडियोज है जो आपने यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दी और उसको आपने ऑफलाइन बैठ के देखना है तो आप यूट्यूब के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो को अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करने के लिए एक डिफरेंट वे है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह कल। और उसकी वेबसाइट भी बता दूंगी कि कहाँ से और कैसे आप यूट्यूब की वीडियो को लिंक अपलोड करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको डिफरेंट जगह पे पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक की वीडियो का लिंक आप कॉपी करके उसको अपलोड करेंगे एक और वेबसाइट पे तो वो आपको पूरी वीडियो डाउनलोड कर देता है। उस वीडियो को डाउनलोड करके आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल अपने रिव्यूज अपलोड करते हैं ना, इसी तरह से आप अपने जो इंटरव्यूज है उनको अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका लेवल कंप्लीट नहीं होगा। अब ये देखिए हम भी समझते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि रेयर केसेस हर जगह होते हैं और ये जो अकाउंट की डिसेबिलिटी है ये तो है ही है और हम सब इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके लिए मैं मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे या तो मार्क जकरबर्ग हमारे सर रेहान से मिल रहे हैं या एक मीटिंग हमारी रेहान स्कूल टीम से लाजमी कर ले ताकि हम अपने सारे मसले मसाइल उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, इस चीज से परेशान नहीं हूँ। अच्छा जी नसीमुल्लाह भाई आपका हैंड रेस था तो। जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं जो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं हो रहा, अगर आप वहाँ यूट्यूब का लिंक आप पोस्ट कर देना तो आपकी वीडियो वहाँ पोस्ट हो जाएगी, एटलीस्ट वो हो जाएगा, आपका सेफ साइड हो जाएगी। तो वो बड़ा आसान तरीका है, आप लिंक पोस्ट करेंगे ना यूट्यूब का तो वहाँ आपको वहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक बचत ये हो सकती है। दूसरा मैं फर्क साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम फर्क साहब काम शुरू किया ना मैडम के साथ, इन्होंने कहा कि आपने सारे सोशल मीडिया पे ना ये एजुकेशन वाला आपने सेलेक्ट किया तो ऐड करना है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं अब 15-16 साल एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बड़े अरसे से पढ़ाता जा रहा हूँ, तो अब मैं एजुकेशन वाला लिखूंगा, यार ये क्या चीज़ है। चलो इधर तो एक डिमांड है तो मैं पूरी करूँ तो मेरे सारे सोशल मीडिया पे अब मैंने चोरी चुपके एक बनाया, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक का अकाउंट और मैंने वहाँ पोस्ट किया। अच्छा वो कब छुपता है सबको पता चल गया, फिर मुझे ये उलझन शुरू हो गई कि मैं दो दो जगह पे काम करता हूँ, तो मैंने ना फिर सारे उस लिंक्स पे लगाना शुरू कर दिया। अब मेरे अपने कोलीग्स ने मुझे पूछा अच्छा आप एजुकेशन वाले हो गए हो, पहले क्या थे, इस तरह के ना कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो कोई बड़ा इशू नहीं हुआ। और दूसरा जो आप कर रहे हैं ना कि पहले बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तो ये एक बड़ी नेमत होती है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, जब खुद बंदा अपना देखता है तो पता चलता है यार ये तो खुद ही सही नहीं है, मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाए ना, थोड़ा सा इजी हो जाए, जो हमको डिस्टर्ब ना करे, अपनी ही बात है। अगर हम खुद ही ठीक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई कह देता है कि शिमला यार थोड़ा सा बेहतर कर ले तो ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इससे और क्या अच्छी बात हो सकती है। मैंने मैडम से सीखा, आप लोगों से सीखा इस तरीके से। जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के करता हूँ, इंटरव्यूज करता हूँ, बहुत सारी सीखी हुई चीजें मैं वहाँ अप्लाई करता हूँ। तो एक से बढ़ के फिर मेरा वो कोई नहीं देखता किसने किससे सीखा था, मिस लुबना से सीखा था, मिस इरम से सीखा था, या आजम भाई से सीखा था, या मुस्तफ़ा से सीखा था, मिस मरियम से सीखा था, किसी को नहीं पता होता। बस मुझे पता होता है मैंने किससे सीखा था। तो इसमें तो कोई वरीड होने वाली बात कोई। आई थिंक इसको एम्पैथाइज करना चाहिए। और ये जो लर्निंग प्रोसेस मिस मरियम के साथ मुझे आ रहा है ना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। आपको एक ना अलग एंटिटी आप बनते जा रहे होते हैं, ग्रूमिंग होती जा रही होती है। तो मेरा तो ख्याल है कि इस वरीड हुए बगैर इसको कैरी करते जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया नसीमुल्लाह भाई। अच्छा मैंने अभी देखा है अपनी फेसबुक पे, आप लोगों में से कोई भी चाहे तो मेरी पुरानी वीडियोस बैठ के देख सकता है, दे आर अवेलेबल। मेरे रिव्यूज अभी भी पड़े हुए हैं और आप लोग देख के बाद में हंसेंगे और आप बहुत सारे कमेंट्स भी चाहे करना चाहे तो आप लाइव भी कर सकते हैं और मुझे आगे क्लास में रिफ्लेक्ट करना चाहे तो दैट्स प्रीटी ओके। और जितना क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, मुझे और सीखने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त और मेरे बहन भाई जो कि मुझसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, वो सिर्फ ये हिम्मत पकड़ लें कि हर किसी का पहला काम बुरा ही होता है।
उसको अच्छा करने में टाइम लगता है, और वो बुरे काम से आपने शुरू करने हैं और उस बुरे को एक्सेप्ट करना है। मैंने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो अभी तक चेंज नहीं किया, एंड दैट्स द ओनली वन आई रिकॉर्डेड, और मैंने वो सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड किया था, मैंने उसको 10 बार नहीं रिकॉर्ड किया था, एंड आई जस्ट पोस्टेड। और मेरा वही इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरी अपनी टीम की, मुझे पता भी नहीं था, और मुझे बाद में 2 महीने या 6 महीने के बाद समझ आता था, अच्छा ये शेयर के बटन पे क्लिक करें तो आपके जो वीडियोज है वो शेयर हो जाते हैं। इट्स बिन 10 to 8 months के मुझे पता चला कि यहाँ से शेयर बटन करने से आपकी वीडियो शेयर हो जाती है। और मुझे समझ नहीं, मैंने कहा 10 शेयर लिखे हुए, ये 10 शेयर है कौन जिन्होंने शेयर कर लिया। और जब मैंने 8 से 10 के बाद उन शेयर्स पे क्लिक करके चेक किया, तो वो 10 लोगों में सबसे पहले मेरा जो अपना इंट्रोडक्शन चेक किया था, मेरे अपने प्रिंसिपल ने शेयर किया हुआ था, और हमारे सर रेहान अलावाला ने शेयर किया हुआ था, हमारे एचआर के जो मैनेजर हैं साजिद भाई, उन्होंने शेयर किया हुआ था। आई वाज सरप्राइज कि इसमें भी कुछ शेयर करने वाला था जो उन्होंने शेयर किया, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली फिर वो ऑटोमेटिकली बहुत नीचे चला गया, क्योंकि तब पिन का ऑप्शन नहीं था कि आपने पिन करना है। तो मैंने शुक्र किया कि शुक्र है ये छुप गए। बट अब जब भी वो बताया कि वो मेरे स्टूडेंट्स छोटी छोटी रील्स निकाल के मुझे अपनी ही चीजों के भेजते हैं, तो मुझे समझ में आती है अच्छा ये चीजें कब तब कैसी थी और अब कितनी इम्प्रूव होगी। तो हमें अपनी इम्प्रूवमेंट इसी तरह सबको समझ में आए। जी मिस जवेरिया, आपको कुछ कहना है? जो अभी आप ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, सॉरी है मैं थोड़ा सा लेट हूँ उसमें। ये जो रिकॉर्ड ऑन जो लाइव सेशन रिकॉर्डिंग, जो लाइव सेशन आपकी आवाज बहुत स्लो है, लाइव थोड़ा सा सेशन लाउड बोल। लाइव सेशन रिव्यूज और इन सब के जो बारे में जो बात होती है, ये जो इश्यूज आ रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये क्यों नहीं रखा गया कि डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर सॉरी रिकॉर्ड करके अपलोड करने का ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया है, ये मेरा सवाल है। जो रिव्यूज है ना, वो इसीलिए रिकॉर्डेड रखे गए हैं कि अगर हम खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे ना, अपनी ही वीडियो से रिकॉर्ड करके हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो उसको आप 10 बार रीटेक कर सकते हैं, आप कीजिए। जो इंटरव्यूज और एआई सेशन है, उनके लाइव करने का पर्पस ये है कि जब आप किसी भी गेस्ट को इनवाइट करती हैं, एंड आई नेवर नो अबाउट इट, ये समटाइम वो मेरे भी आइडलाइज हैं, मुझे उन्होंने टाइम नहीं दिया, ये सर्टन रीजन से मेरी हेजिटेशन इतनी रही कि मैं उनसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाई, बट यू गॉट द चांस और आपने इनका इंटरव्यू कर लिया। तो आपकी इंटरव्यू के थ्रू मैं अपने सवाल उनसे इनडायरेक्टली पूछ सकती हूँ, टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका वो इंटरव्यू पूरा देखूंगी भी, आपको एक तो फायदा हो जाएगा कि अच्छा मरियम ने बैठ के मेरा पूरा इंटरव्यू देखा, तो वॉच टाइम आपका पूरा हो गया। मुझे ये फायदा हो जाएगा, अच्छा मेरी आज फेवरेट पर्सनैलिटी थी में से जवेरिया की शो में, तो मैं तो आज उनसे बैठ के सवाल भी कर सकती हूँ। तो मैं कमेंट सेक्शन में एज अ कमेंटर आपकी कमेंट्स लिखती जाऊंगी, आपको उस कमेंट्स का फायदा हो जाएगा, मेरा इस तरह से फायदा हो जाएगा कि मुझे उनसे सवाल पूछने का फायदा मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जो गेस्ट होते हैं ना, वो भी पसंद करते हैं कि आप उनको अप्रिशिएट करें, उनके टाइम को वैल्यू करें, क्योंकि देखिए वो गेस्ट जो है वो आपसे कुछ नहीं ले रहा। नॉर्मली अगर हम आज एक 5 मिनट भी किसी को देते तो हम उसका चार्ज करते हैं, हम कहते हैं भाई मेरी चीज की तो बहुत वर्थ एंड वैल्यू है, तो हमें पता होता है कि हम कोई 30 मार खा नहीं है, बट फिर भी हम समझते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, तो मैं तो किसी को फ्री में कुछ नहीं दूंगा, मुझे तो चाहिए पैसे। तो जो फ्री में आपके पास आ रहा है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना बहुत जरूरी है। वो आपको टाइम दे रहा है, अपनी जिंदगी के 25 से 30 मिनट दे रहा है, जो कि बहुत कीमती है उसके, वो कुछ और बहुत अच्छा कर सकता है। तो उसके टाइम को, उसकी प्रेजेंस को वैल्यू करने के लिए उसको लाइव करवाया जाता है, ताकि आपकी ऑडियंस के साथ साथ उसकी ऑडियंस तक भी ये मैसेज पहुंच जाए कि हाँ उसने एक जवेरिया को इंटरव्यू दिया था, और उसके कनेक्शन में से अब जवेरिया को और कनेक्शन मिल जाए। अरे जी जावेद। जी मैम, मेरा एक सवाल था, जैसे कि अभी जो लाइव सेशन चल रहे हैं ये यूट्यूब हम्म पे जो है रेहान एआई इंस्टीट्यूट पे रिकॉर्डेड है, तो इसका जो लिंक है वहां से कॉपी करके और जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे सब पे पोस्ट करना है ना? नहीं मेरे नहीं करना? भाई, ये तो आपकी क्लासेस है, इनको कुछ नहीं करना आपने, ठीक इसको है? नहीं करना ये है? तो आप, हाँ जी, इसको कुछ नहीं करना, ये जी आपके लिए पड़ी हुई है। आपको बैठ के देखना है ना, मरियम ने एक हफ्ते पहले क्या बात की थी जब वो क्लॉड.ai के बारे में बता रही थी, क्लॉड को जी। कैसे यूज करते हैं। आप जाके क्लॉड की क्लास देख सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको ठीक है। बता दूंगी कि ये मेरा टास्क नंबर था, इस डेट को क्लॉड की मैंने क्लास दी थी। तो आप जब 23 जुलाई का जो हमारा वीडियो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उस जाके उस डेट का वीडियो देख ले, तो आपको वो मिल ठीक जाएगा।
मैं ये बात कह रही थी कि जो आप टास्क अपलोड कर रहे हैं ना, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपने कोडिंग का टास्क पूरा कर लिया, आप इसको पोस्ट कर दें, तो इसको कहाँ पोस्ट करना है? इसको फेसबुक पे पोस्ट करना है और ठीक इसको है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, बस। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा टास्क किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है, बस ठीक, ये बता दी। ठीक है ठीक है। जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये इंस्टा पे तो लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं होती है ना? नहीं, सब में भी हो जाती है। नहीं, लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं, इवन सॉन्ग सॉन्ग भी अपलोड होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मिस जवेरिया, अभी हाल ही में मैंने अपना जो है वो 21 मिनट 21 सेकंड का रिव्यू अपलोड किया एंड इट्स अपलोडेड एंड इट्स होल अपलोडेड, उसमें से 1 सेकंड भी कट नहीं हुआ, बट इट अच्छा, टेक्स मेरे टाइम। ये बात जरूर है कि कोई भी वीडियो जब हम रिकॉर्डेड करके अपलोड करते हैं ना, वो टाइम जरूर लेती है, तो वो टाइम तो लेगी। बस आप उसको अपलोड करके 5 मिनट तक उस स्पेसिफिक सोशल मीडिया को ऑन रखे, 5 मिनट बाद ऑफ कर दे, वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथमेटिकली वो अपलोड हो जाएगी, आपको नहीं करना। That's it। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट, आई होप कि आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। और आज हमारा कोडिंग का टास्क है कि हमने टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ये टू डू लिस्ट जो है ना, हम में से किसी की हैबिट नहीं है, बट आई आई रियली अप्रिशिएटेड द फॉरनर्स जिन्होंने मुझे ये चीज सिखाई। आपको रात को ही अपने अगले दिन को प्लान कर लेना चाहिए। जो कि अच्छे और कामयाब लोग हैं और जो चाहते हैं कि उनका टाइम को वो खुद वैल्यू करें और सामने वाला वैल्यू करेगा, वो रात को अपना अगला दिन प्लान कर लेते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी चीजें बहुत स्ट्रीम रहें, मैनेज रहें, डिसिप्लिन रहें, तो रात को 3 चीजें लाजमी करके सोएं। एक तो प्रॉपर जो नींद के लिए है, अ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपकी नींद प्रॉपर रहे, उसका एक जो पैटर्न है वो प्रोप्रिएट रहे, वो जरूर करें। और दूसरी बात, हल्का सा सर में मसाज लाजमी करके सोए, जिससे आपको सारे दिन का स्ट्रेस, सारे दिन की एंग्जाइटी, सारी नेगेटिविटी जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीज हो जाती है, और आप बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स जो है आपकी नींद पूरी होगी, और जिससे आप सुबह बहुत फ्रेश उठेंगे, आपके काम पूरे हो जाएंगे। तीसरा, सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट लाजमी बना लें। सुबह मुझे क्या करना है, मरियम से बात करनी है, दौलत से बात करनी है, अपने कौन कौन से टास्क अपलोड करने हैं, आज रात के टास्क कौन से थे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड होंगे, किस पे नहीं होंगे, वो सारी लिस्ट बना। ठीक है, चाहे आप बहुत ज्यादा उसको जो है वो जिसे कहते हैं ना कि डीप डिगिंग करके नहीं बनाए। कल मुझे रिहाना आई टीचर्स इंस्टीट्यूट के टास्क करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे जो है वो अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है, हैंग आउट करना है, ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, मुझे जो है वो अपनी मामा से ये काम कहना है कि ये मेरा ये काम कर दीजिएगा, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, मुझे जो है वो फला को मैसेज करना है कि मेरे साथ इंटरव्यू कर ले, या मुझे इंटरव्यू के लिए गेस्ट ढूंढना है, नंबर 4 ये हो गया। तो इसको किसी ऐसी जगह पे अपलोड करें जहाँ पे या तो अपने सेलफोन में रखें, ताकि आपको ऐसा रिमाइंडर ये मिलता रहे। मतलब मैं क्या कहती हूँ, अपने सेलफोन में रिमाइंडर्स लगा लेती हूँ कि सुबह मुझे ये 3 से काम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये करने ही करने हैं। तो वो मैंने अपने मोबाइल फोन में 9 बजे के बाद के अलार्म सेट किए होते हैं। अब वो बार बार अलार्म बजेगा तो मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये काम तो करना ही करना। तो जैसे अलार्म बजता है तो मुझे याद आ जाता है, अच्छा मैंने ये काम करना है। इस रात देख लो, मैंने अपनी टिप शेयर कर दिया आपके लिए। सो आप अपनी अलार्मिंग से भी इन सारी चीजों को, अपने सेलफोन को, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा टू डू ऐप है एक बहुत अच्छी, आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसके अंदर भी अपनी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर लें। हर एक का रिमाइंडर सेट कीजिए और हर एक का रिमाइंडर आपको मिलता जाएगा। तो दिस इज द पर्पज ऑफ टू डू लिस्ट। तो आज आप अगर अपनी टू डू लिस्ट खुद से डिजाइन करते हैं और उसके बाद इसको अपने लिए एनेबल कर लेंगे अपने वेबसाइट के थ्रू, तो आप और भी चीजें कर सकते हैं। अब अच्छा, ये ऐप को आप अपने मोबाइल में कैसे करेंगे? तो भैया, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है जो कि कोडिंग विद एआई का आपको टेस्ट दिया जा रहा है कि भाई, जो मेरे बहन भाई कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनको कोडिंग करनी है, या वो समझते थे कि भाई मुझे काश ये काम आ जाता कि मैं भी बहुत सारी एप्स डेवलप कर सकता, मैं अपनी ऐप बनाता जिसपे प्रॉपर नाम लिखा आता कि ये वाली ऐप जो है ये इशादारा ने बनाई है, इशादारा अपना लोगो लगाती है, इशादारा खुद बताती है कि मैंने ये ऐप किस लिए बनाई है, क्यों बनाई है, इसके क्या पर्पसेस है। तो इन सब के लिए फिर आपको बहुत सारी और चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया जा रहा है कि जो कोडिंग है वो बहुत मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हर कोई कर सकता है। ठीक है, सो हम सबसे पहले आज टू डू लिस्ट बनाते हैं। मैं उसका प्रॉम्प्ट शेयर कर रही हूँ चैट के अंदर, और व्हाट्सएप में भी शेयर है। तो आप सबसे पहले, आपके पास 10 मिनट है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर ले, फिर हम अपना अगला टास्क कंप्लीट करते हैं।
ओके। राहुल भाई अपना कैमरा ऑन कर लें। अरे वाह, आज तो हमारे एडमिशन मैनेजर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम जय भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक, आपके सामने। मेरे सामने? सही। ओके ग्रेट। बाकी सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जय भाई। जी अल्लाह का वालेकुम शुक्र है। अस्सलाम। ऑल गुड। ऑल गुड। बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, जिन्होंने वालेकुम सलाम नहीं कहा। जय सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वालेकुम आपकी अस्सलाम क्लासेस सर। बहुत अच्छी जा रही होंगी। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। राहत बाजी खैरियत से हैं? ठीक हैं? पूरे जोश के साथ डेली बेसिस क्लास रहेंगे? उम्मीद है आप डेली बेसिस क्लास लेती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। पार्टिसिपेंट हमने क्लॉड डॉट एआई को यूज करते हुए कोडिंग के ये टू डू लिस्ट ऐप डिजाइन करनी है। क्लॉड डॉट एआई को ओपन कर लीजिए, जो प्रॉम्प्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके राहुल भाई, और जो मैंने प्रॉम्प्ट जूम चैट में शेयर किया इसको कॉपी करें, क्लॉड को दे रहे और क्लॉड आपके लिए ऐप डिजाइन करेगा। और उसके बाद अगर कुछ और चीजें आपने ऐड करानी है तो वो आप क्लॉड को बताते जाइएगा कि ये फंक्शन भी ऐड कर दो, ये फंक्शन भी ऐड कर दो, तो वो आपके लिए फंक्शन सारे ऐड करता जाएगा। So we have 10 minutes. 10. It's time now. 17 minutes past 10 p.m. UTC plus 5. तो आपके पास 10:20 तक का टाइम है। तक सॉरी 10:27 तक का टाइम है। 10 मिनट में आपने ये अपनी ऐप कंप्लीट करनी है। बस जवेरिया क्या लिख रही है? अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी राइट करना है। हाँ मिस जी मरियम, बिल्कुल, आप ये कर लीजिए कि वो ऐसा करता है समटाइम कि आपके ये तीनों फाइल अलग अलग बना के देगा। तो आप जब उसको पूरा प्रॉम्प्ट ये दे देते हैं ना कि इन तीनों को, तीनों जो लैंग्वेजेस है उनकी एक फाइल बना के और उसी के अंदर जो है वो मुझे सेव करके दो, तो वो फिर प्रॉपर जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा चीजें आपकी डिजाइन होगी। जी मैं सुन। मैम मेरा क्लॉड डॉट एआई का इशू सॉल्व नहीं हुआ, कोई और सोल्यूशन बता दें कि वो अगेन नंबर नहीं मांगता है जब। नहीं, तो मैं जब अगेन नंबर अच्छा, डालती हूँ तो वो ब्लॉक नंबर आता है। मेरे पास दो नंबर थे, मैंने दोनों नंबर डाले, जीमेल चेंज किया, ब्राउजर चेंज किया। अब मैं एक सोल्यूशन रह गया जो मैं सोच रही थी, पहले मैंने कहा आपसे पूछूं, माइक्रोसॉफ्ट पे अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो उसके थ्रू चल जाएगा क्लॉड एआई? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। मिस गुलशान, आपने भी ट्राई किया या आपने अभी ट्राई नहीं किया? मिस मैंने भी ट्राई किया था, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। नसीमुल्लाह भाई जरा क्लास का देख लीजिएगा। मैं जरा ब्रेकआउट रूम में जा रही हूँ। मिस रुपना और मिस गुलशान के साथ है कि आज मैं ये वाला प्रॉब्लम का फिक्स कर दूँ। इसके बाद हमारी टेड टॉक नहीं है। इसके बाद कैनवा का एक पोस्ट है वो डिजाइन करवाना है ताकि कैनवा का टास्क क्लास में कंप्लीट हो। ठीक है। मैम मैम एक सवाल था छोटा सा। हाँ जी हाँ जी, पूछे जवेद भाई। जी मैम, अभी आपने जो बताया था क्लाउड डॉट आई पे जाएं और उस पे क्या करना है? उस पे आपने जो जूम पे मैंने प्रॉम्प्ट भेजा है ना, उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दे, जो मैंने मैसेज भेजे। मिस लिब्रा ज्वाइन रूम पे क्लिक करें। मिस गुलशान आप भी। मैम आपने जो प्रॉम्प्ट भेजा है वो चैट में आएगा? हाँ जी, जूम चैट में आएगा। मैम। जावेद भाई आप देखें जरा चैट में जाएं। जी मैं पहुंच गया चैट में। जहाँ मिस मरियम का है ना आइकन बना हुआ है ना, वहां चले जाएं। अच्छा सर। अगर ना मिले तो मुझे बताएं, मैं आपको शेयर कर दूं। सर नहीं मिल रहा। ओके, एक मिनट, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा।
जुबेद भाई मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आप जरा देखें। सर मिल गया। चलें करें फिर आप। सर जी जी। हमने इसको बना के बाद इसके इसमें टास्क भी ऐड करने अपने। हाँ आप इसको चेक करेंगे ना, जब आप यस इसको बनाएंगे तो चेक करेंगे फंक्शनल है कि नहीं। जब फंक्शनल हो जाए एक दो टास्क ऐड करके देखें, जब फंक्शनल हो जाए तो इसको पब्लिश करके इसका लिंक कॉपी करें और आप पोस्ट कर दें। सर मैंने लाइक लिखा है कि कैनवा डिजाइन बनाना है, तो वो ऐड हो गया। आप एक दो एक किया ना, एक और करके देखें, ओके डिलीट करके देखें होता है ऐसे। अगर फंक्शनल है तो पब्लिश कर दो और उसका लिंक कॉपी करके तो आपने पोस्ट कर दें। ओके। हेलो सर। जी जी। सर ये जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया तो सर ये यहाँ पे आ गया टू डू लिस्ट, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड गेट थिंग्स डन। और इसके बाद में सर यहाँ पे एक आ रहा है ऐड अ न्यू टास्क, एक ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है ऐड ऐड टास्क। सर इसमें आगे क्या करना है? अब आपको वो बना के दे रहे हैं ना कि अगर आपने एक बात उसमें ऐड कर लिया है, फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग का एक टास्क किया है, फिर एक दूसरा करना है, तीसरा करना है, ऐड वाला बटन वो बता रहा है कि आप उसमें आप ऐड कर लें। अब तो सर इसको क्या करना है, सिर्फ इसको पब्लिश करके कॉपी कर लेना, पब्लिश में ऑप्शन में जाके। पहले आप चेक कर लें कि ये फंक्शनल है। सर इसको चेक कैसे करेंगे, इसको कुछ मतलब इसमें कुछ आप देख, टास्क? आप उसके ऊपर जो बटन आप बता रहे हैं क्या है, ऐड आया, सर ऐड, इसमें आ रहा है ऐड अ न्यू टास्क। ऐड अ न्यू टास्क, आप उसको क्लिक करें। जी कर लिया सर। अब यहाँ पे कुछ लिखना होगा। उसके ऊपर क्या है मेंशन, क्या है, टास्क का नाम लिखो, डेट वगैरह आई है। नहीं सर डेट नहीं आ रही है सर। टास्क का नाम लिख दो। सर क्लाउड लिख दूं, क्लाउड डॉट AI। नहीं, आप ऐसे चले, आप लिखें मीट अ फ्रेंड, मीट ऑफ फ्रेंड, ठीक है सर, मीट ऑफ फ्रेंड। विजिट अ फ्रेंड या मीट अ फ्रेंड। ठीक है सर। अब इसको ऐड हो गया। अब मैं सर इसको ऐड करता हूँ। हाँ सर हो गया। सर इसमें अच्छा हाँ सर हो गया। हो गया, एक और ऐड करो, हम्म। फिर आगे ना ऐड, हाँ सर इसमें क्या, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दे देना? कोई और लिख दो, ऐड करो ना। या हम सिर्फ ये चेक करें कि इसमें मेरे काम ऐड हो रहे हैं, मेरे टास्क अच्छा ऐड ऐड हो हो रहा है कि नहीं, अच्छा सर इसमें मतलब ऐड हो रहा है कि नहीं ये देखना है ना। हाँ हाँ। ठीक, ठीक है सर, ओके। आप इसमें डे डेट भी ऐड कर सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि आपको वो शो भी करना शुरू सर कर दे। दूसरा ऑप्शन भी हो गया। बस ये पता चल गया ना फंक्शनल है। जी। अब इसको पब्लिश करो। ठीक है सर, पब्लिश को बटन में जाके उसको कॉपी कर लेंगे, है ना। पहले पब्लिश कर लें, फिर बार में जाके इसका लिंक कॉपी करें। कॉपी कॉपी भी हो गया सर। अब इसको सर फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, है ना। इस मीडिया पे आपने जाके जाना प्लेटफॉर्म पे, वहां जाके इसको पोस्ट कर दो और सर इसके इस पे बाद मतलब सर इसको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, तीनों तीनों प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए जुबेद भाई, गूगल शीट में आपके पास लिंक है ना सारे। हाँ सर गूगल शीट वाला मेरा लिंक मिल गया है, लेकिन अभी मेरा काम अधूरा है, मैं उसको कर लूंगा सर, अब नहीं मेरा अब हो गया, मैं हो आपको जाएगा सिर्फ मतलब। बात याद करवाने दो। आप जी इस लिंक को कर लो ना सेव, ठीक है। जी हाँ तो जहां जहां प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है ना, आज जी की डेट में जो डेट इस जी टास्क की है, उस डेट वहां लगी हुई है डेट गूगल शीट में, वहां जाके फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो फेसबुक पे पेस्ट कर देना। जहां लिंक फेसबुक पे किया हुआ है वहां से कॉपी करके गूगल शीट पे कर देना। जहां आपने जी सर।
हाँ, इस तरीके से पहले उन प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर लो, वहां से लिंक फिर आप अपनी गूगल शीट पे ले जाना। ठीक है सर। हो गया, बाकी सब लोगों ने मेरा ख्याल काम कर लिया है। अहमद, आपका तो काम मुझे लगता हो गया। नहीं, सिद्रा, आपका भी मुकम्मल हो गया? जी सर, कंप्लीट तो कर लेती हूँ, अभी मैंने वो सोशल लिंक्स नहीं बनाए, अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। जब बना के तो फिर वो पोस्ट कर दिया करूंगी, सही 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 सही। शायद नेक्स्ट ग्रुप में हो ना। जी जी जी, सही। आजम भाई, आपका भी हो गया? सॉरी सर, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं आपका टास्क हो गया मुकम्मल, ये क्लाउड वाला? बिल्कुल मैंने कर लिया सर, तकरीबन कंप्लीट है। ठीक हो गया। किसी का रह गया हो, किसी को इशू आ रहा हो? सर इसमें पोस्ट लिखना है क्या? पोस्ट 5 6 ऐसा कुछ टाइटल नंबर? आप देखें, जो मैडम ने आपको शेयर किया है ना आज का टास्क, जी। ठीक है, उसमें आपको लिखा हुआ सोशल मीडिया पोस्ट है, जितनी पोस्ट टाइप किया ना वो लिखा हुआ है। आपने जो पहले पोस्ट नंबर ऑलरेडी शेयर किए है ना, उसके जी। मुताबिक इसको नेक्स्ट नंबर दे देना आप। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, सीक्वेंस में आप कर लेना। ठीक है सर। सही हो गया। आज का टास्क जो है बाकी वो आप शेयर कर लेते हैं कि? अच्छा, मैंने चैट बॉक्स में ना वो चीजें ऐड कर दी हैं जो हमारा टोटल आज का टास्क था। ये भी बोला है। जरा देखिए कि आपको मिल गया चैट बॉक्स में हमारा जो आज का टास्क मुकम्मल है, पूरी डिटेल लिस्ट है। तो आपके साथ शेयर होगी चैट बॉक्स में? जी सर, हो गई है, हो गई। अब जो हमारा काम रह गया ना उसको अभी हम देख लेते हैं। ये हमारा तो हो गया। इंटरव्यू, कंडक्ट एन इंटरव्यू हाउ एआई ट्रांसफॉर्मिंग, ये तो आप खुद कर लेंगे। क्लाउड वाला हो गया। सॉन्ग क्रिएशन है। सर ये सर ये व्हाट्सएप पे भी आपने भेज दिया टास्क आज का? व्हाट्सएप में तो ऑलरेडी मैडम ने शेयर किया हुआ है। जी अच्छा, जी, मैंने चेक किया, मैम ने ओके। ऑलरेडी शेयर कर दी है। अच्छा सर, ये अभी साथ शेयर भी करना है अपने इस सोशल मीडिया के ऊपर? ये अगर कर देंगे तो अच्छा, ओके। टास्क मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इस पे जितना परफेक्शन करने के लिए जितना टाइम हम डिले करते हैं ना, उतना ही काम ये ज्यादा लेता है, टाइम भी ज्यादा लेता है। जब आप कर रहे हैं उसी वक्त इसको बड़ा अच्छे तरीके से कर लें और साथ साथ करते जाएं, जान छूटती जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया जो पोस्ट है, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड start by changing your mindset, and mindset only changes when you take risks। ये रेहान अलावाला साहब का ये कोट है, इसको आप कर लें। अभी हमारे पास टाइम है, 30 मिनट हमारे पास पड़े हुए हैं, तो इसको आप जनरेट करें। मैडम अभी कह के गए हैं ना, इसको मुकम्मल कर लें आप। जी सलमान भाई, आपसे काम हो रहा है? कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर, कोई इश्यू नहीं आ सही रहा। सही। आप भी पंजाब कॉलेज सर पढ़ाते हैं? हाँ जी, आप भी पढ़ाते हैं? नहीं 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 सर, मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब कॉलेज में। कहाँ वाला? ये मैं लाला मूसा, अच्छा अच्छा गुजरात अच्छा। के साथ जो है।
सही 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 है, समझ आ गया। वो उधर हमारे प्रिंसिपल के ऊपर केस हो गया था, माफ, प्रिंसिपल के उनको माफ कर दो। ऊपर। अच्छा, मैंने ये पूछा था आपके, आपसे काम हो रहा है, सही हो गया फिर? आपकी वो ऐप बन गई? कौन? अच्छा, वो टू डू लिस्ट वाली। हाँ। हाँ जी, हो गया, मैंने अपलोड भी कर दिया फेसबुक भाई, और लिंक्डइन के ऊपर। और तेज आदमी हो यार तुम। ये साथ ये भी कर लो, सोशल मीडिया वाला भी कर लो। हाँ जी, वही कर रहा हूँ। मिस फायजा नहीं नजर आती, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, फायजा खालिद। सर 3-4 दिन से वो क्लासें ज्वाइन ही नहीं करी है उन्होंने। मोस्टली स्कूल्स ओपन हो गए होंगे। हाँ ये भी है। मिस जवेरिया, आप ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं रेहान में? नहीं नहीं सर, जी। मेरा बेटा पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, सही है। आज मिस लाइला खाना ऑफ जा रही हैं, उनका कैमरा बंद ही जा रहा है। अच्छा, मिस राहत, राहत पढ़ाती हैं, मिस राहत अच्छा, अभी पढ़ाती किसने बताया कि रेहान एआई इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी का? वो कौन है? मेरा मेरा पढ़ रहा है। मिस राहत से मैं मिली भी थी पर्सनली, जब मैंने कोरंगी कैंपस विजिट की थी तो। हैं? मिस जवेरिया अ, मिस जवेरिया, आपने बताया कि आपका बेटा पढ़ रहा है? जी जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपको क्लास के बाद में शायद कांटेक्ट करूं कि जी सर। मुझे कुछ थोड़ा सा फीडबैक लेना है। मैं भी अपने बच्चों के लिए जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा श्योर। करना चाह रहा था कि वो, है ना? ठीक है, थैंक यू। जरूर। अच्छा नसीम भाई, मैंने जी सर। टास्क कंप्लीट कर लिया, उसको फेसबुक पर डाल दिया। उसमें मैंने एक फंक्शनलिटी और भी ऐड की है, जी जी। जो कि बेसिकली अलार्म की है। ठीक है, तो वो काइंडली जरा आप देखिए, फेसबुक मैंने आपको टैग मैं अभी सर को देख, अपलोड किया है, तो आप जरा अपने तौर पर मैं अभी देखता हूँ। है काम कर रहा है। आपकी ना आवाज कट रही है, मैं वैसे इतनी मुझे समझ आ गई, आपने मुझे टैग किया कुछ। सर मैंने आपको जी जी। मैसेंजर पे एक मैसेज भेजा था कि जूम पे जूम नहीं डाउनलोड हो रहा मेरे नए लैप रूम बुक पे, तो सर आपने रिप्लाई नहीं किया था। आप बता सकते हैं मुझे क्लास के बाद? जस्ट एक मिनट, आप दोबारा जरा पूछें। जूम डाउनलोड नहीं हो रहा? जी सर, मैंने लैपटॉप चेंज किया था, क्रोम बुक लिया अभी ना, अच्छा, तो लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ रहा था सर, उसमें क्रोम बुक ना डाउनलोड हो रहा है ना गूगल पे जाके ओपन हो रहा है। क्रोमबुक का वैसे तो इसमें इशू शायद कोई प्रॉब्लम वैसे आ गया हो, ऐसा तो कोई इशू नहीं होता, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है, इजी है। सर काफी ज्यादा ट्राई किया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो सर थोड़ा सा अगर आप क्लास के बाद मुझे समझा देंगे तो। मैं जैसे आप डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड होता है, वैसे ही मैं ट्राई कर लूंगा। थैंक यू सर। अगर आपने मैसेज किया हो ना तो कॉल बुक कर दिया करें। मैं ना सुबह 7:30 कॉलेज होता हूँ, उसके बाद 4 बजे तक कॉलेज होता हूँ, एडमिशन हो रहे हैं उधर। उसके बाद मैं 5 बजे से लेके 7, साढ़े 6, पौने 7 तक आर्ट्स की क्लास करता हूँ। 7:30 से लेके पौने 9 बजे तक मैं एक AI अर्निफाई के नाम से छोटा सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ काम करता हूँ। 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपके साथ काम करती हूँ। 11:30 से फिर मैंने 12:30 तक एक आर्ट्स के और ऑनलाइन काम करना है, इसके बाद मैं सोया। सर इंशाल्लाह मैं फिर आपको कॉल कर दूंगी कल अगर। फर्क नहीं पता है।
हेलो सर। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे ये गूगल शीट में जाने के बाद में सर स्टोरी पोस्ट में मेडिटेशन में तो लिख दिया ज्वाइन इन क्लास, और डेट में लिख दिया सर आज का डेट। ठीक है सर, और इसमें स्टोरी पोस्ट में सर जो अभी जो हमने मतलब जो प्रॉम्प्ट थे के बनाया था सर क्लाउड को, उसका उसके बारे में लिखना है या उसका इसका सर का सर। जवेद भाई, जी। जवेद भाई आप मुस्तफा भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, अहमद मुस्तफा भाई से। हाँ सर, मैं मेरा आज उनसे मैसेज मैंने किया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो मेरी हेल्प करेंगे। आप थोड़ा सा ना उनसे टाइम ले लें, अगर वो आपको टाइम दे देना तो ये बहुत आसान है, गूगल शीट फिल करना ना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हाँ चूंकि नहीं, सर। आपको सर थोड़ा सा। आप सर आप उनको एक बार बोल देना, बाकी वैसे उन्होंने एग्री किया था कि हाँ मैं करवा दूंगा अहमद भाई, आज। अहमद भाई आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर देना, 10-15 मिनट हो सकता है, श्योर कर देंगे। पोस्ट जवेद, करें ना अपने, फिर मैं बता दूंगा कैसे उसको करना। जवेद भाई आ, आप नेटवर्किंग अच्छी कर लें, टाइम एडजस्ट करके ना आप करें। ये जो अपनी लर्निंग होती है ना बड़ी डिफरेंट होती है, जो आपस में हम खुद नेटवर्किंग करके करते हैं। ठीक। कल करेंगे सर, कल करने बोले। आप खुद इनसे बात कर लें जब इनके पास टाइम हो, अच्छा इनसे ठीक है। बात कर लें ना। हाँ इस हेलो अहमद भाई। आप क्लास के जी बाद जी। बात चलें जी कर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कर- कल कल सर ये करवा दें मेरा। ठीक है, आप मुझे मैसेज करें। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक। सर ये जो अभी हमने क्लाउडी पे जो बनाया है, इसको इंस्टा पे तो अपलोड नहीं हो पाएगा ना ये? मुझे इंस्टाग्राम बहुत मुश्किल लगता है। मैं सालों से यूज कर रही हूँ और वो फेसबुक और सबसे सोशल आसान मीडिया है, मैं बट चलेगी आपको परेशानी हो रही है थोड़ी इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल न्यू यूजर है, वरना इंस्टाग्राम सबसे इजी टू हैंडल है, वो इतना मुश्किल नहीं है। फेसबुक मैम ज्यादा मुश्किल है जिसको बहुत आसानी से मैं हैंडल कर ली। मैम इंस्टाग्राम पे थोड़ा बता दीजिए ना, इंस्टाग्राम पे कैसे होगा, मेरा भी नहीं हो रहा। ये वाला पोस्ट इंस्टाग्राम तो पे नहीं नहीं होगा, नहीं होगा ना? जी। इंस्टाग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं इंस्टाग्राम होगा। पे नहीं करना मेरे भाई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लिंक्डइन और फेसबुक, दैट्स इट, मैम इन दो के अलावा नहीं करना। फेसबुक और लिंक्डइन दोनों पे हो गया है। अच्छा, और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आपने कोडिंग के टास्क में जो लिंक्स अपडेट करने हैं ना, वो आपने फेसबुक और लिंक्डइन के नहीं करने, वो आपने जो क्लॉड का लिंक बनाया है ना उसको अपलोड करना है। जो हाइपरलिंक हम गूगल शीट में मेंटेन कर रहे हैं, वो आपने फेसबुक और लिंक्डइन का नहीं देना, वो आपने क्लॉड का जो लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम, उसको आपने अपनी गूगल शीट में भी कॉपी पेस्ट करना। जो ठीक है। टास्क कंप्लीट हो रहे हैं उस टास्क का ये देना ना। जी। जी जी जी, जी जावेद। ठीक। ओके। ओके पार्टिसिपेंट्स, अब आपका दूसरा टास्क है कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है आज की, ताकि हम 2 टास्क क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, 2 आपके क्लास के बाद के रह जाएंगे, जिसमें एक आपका सॉन्ग क्रिएशन है नाइट्स ऑफ स्केटू एंड टेल्स ऑफ चित्राल, वो आप क्लास के बाद कर लीजिएगा, और साथ में इंटरव्यू कंडक्शन है, गिवन और टेकन जो भी आपके लिए अवेलेबल है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो सोशल मीडिया पोस्ट है सर रेहाना लवाला की, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ जूम चैट में, इसको अभी डिजाइन कर लीजिए ताकि क्लास में रहते हुए हम इसको भी कंप्लीट कर लें। तो 2 टास्क अभी हमारे क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे। मैम ये कर रहे हैं, ये ना इनको मैंने शेयर कर दिया, पहले इनके जल्दी मुकम्मल हो गया था टास्क। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया, चलिए ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा, आज हमारा कोई एआई सेशन नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी एआई सेशन की छुट्टी। मिस मरियम। जी जी। मैम ये जो आज का प्रॉम्प्ट है क्लाउड एआई में लिखने के लिए, आपने कहा था इसके नीचे एक लाइन ऐड करनी है, वो मुझे लाइन नहीं मिल रही, वो कौन सी लाइन थी? उसको लिखते हैं मेक इट इन वन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल इन इट्स इंटरनल। ये जितने भी आपके प्रॉम्प्ट आएंगे इस पूरी बुक में, हर प्रॉम्प्ट के लास्ट में आपने ये सेंटेंस ऐड कर देना, क्योंकि अगले दिन जो है एक पार्टिसिपेंट ने सिंपली सिर्फ ये प्रॉम्प्ट शेयर कर दिया, ठीक है, तो उसको तीनों, हाँ हमारी ये मिस इरम के साथ हुआ था, उसने मिस इरम को तीनों अलग अलग फाइल बना के दी, ठीक है, उसको कहना होता है कि अभी इन तीनों को मर्ज करके मुझे एक फाइल बना के दो। ठीक। ठीक है, तो वो फिर आपको सारी फाइल्स इकट्ठी करके बना के देता है, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
ठीक है। मैम अभी जो आपने शेयर किया है जूम चैट में, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ स्टार्ट बाय चेंजिंग, ये वाला इसको क्या करना है, कॉपी करना है? इसको आपने कैनवा को खोलें और कैनवा पे एक अच्छा सा डिजाइन बनाइए, टेम्पलेट को सेलेक्ट करके उसको एडिट करके और फिर एक अच्छा सा कैनवा का डिजाइन बनाना है। अच्छा ठीक है, इसको पहले कॉपी ठीक है। करके कैनवा पे पोस्ट करना है। हाँ जी। ये वो आपका व्हाट्सएप है ना, उसमें मौजूद है ये। मैम मैं ये डिजाइनिंग से रिलेटेड एक बात कहना चाह रही थी कि हम हम्म। पोस्ट और डिजाइन करते ही करते हैं, कैनवा पे वर्क करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अगर इस बारे में ये डिस्क्रिप्शन मिल जाए कि जैसे हम लोगो लेफ्ट साइड पे हमेशा लगाएं या राइट साइड पे लगाएं। मैंने सम टाइम देखा है कि लोगो जो है ना वो बॉटम पे भी लगे हुए होते हैं। तो ये थोड़ी सी अगर डिजाइनिंग की मजीद हम लोगों को मतलब मिल जाए ना नो हाउ, तो ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं कैनवा पे काम। हालांकि वहां पे तो काम बहुत आसान है, लेकिन जितने फिर भी। प्रोफेशनल्स है ना, जितने प्रोफेशनल्स है वो लोगों कभी बॉटम में नहीं लगाते। वो या हम्म। तो मिरर ऑफ द मतलब वो जो एक पिक्चर होती है उसके पैरेलल में मिडल में लग सकता है, या हमेशा टॉप राइट और लेफ्ट पे लगता है। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बॉटम में नहीं आता। बॉटम में आप हमेशा अपने एड्रेसेस को ऐड करते हैं, ये बात याद रखिएगा। एड्रेसेस मीन्स आपकी कोई वेबसाइट है, आपके कोई कॉन्टेक्ट्स है, आपका कोई लोकेशन है। आप ये तीन चीजें अपनी हमेशा बॉटम में ऐड करते हैं ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। आपके उस जो लोकेशन है उसको रीड आउट कर सके, क्योंकि वो लोकेशन, कांटेक्ट और थर्डली कोई चीज मैंने एक और बोली है, मैं भूल गई हूँ। लोकेशन, कांटेक्ट और आपकी वेबसाइट। करेक्ट। वेबसाइट, लोकेशन और कांटेक्ट, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंटली नजर आनी चाहिए, और इनको हमेशा लास्ट पे जो है ना वो एक ऐसी छोटी सी रेक्टेंगल जो है ना उनको ऐड करके और उसपे वो ये तीनों पोस्ट किए जाते हैं सेपरेटली, ताकि अगर कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो सेल नंबर आपका बहुत विजिबल होना चाहिए, और आपके कोई भी जो पार्टिसिपेंट है इंटरेस्टेड है आपसे कांटेक्ट करने में, उसको नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम ना। आपकी वेबसाइट बहुत क्लियर और विजिबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि आप वेबसाइट पे अपलोड करिए किया या आप रेफर कर रहे हैं कि भाई हम और रजिस्टर्ड गूगल पे मौजूद है, तो लोग आपको गूगल से क्रॉस वेरीफाई कर सके। थर्डली आपने लोकेशन बहुत क्लियरली मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल कोई रियल वर्ल्ड बेस्ड जो है, रियल लाइफ बेस्ड इवेंट होने जा रहा है, तो फिर आपको लोकेशन बहुत क्लियरली मेंशन करनी होती है। और अगर मैम आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्चुअल नहीं है, जो फिजिकल भी है, तो फिर भी आपको अपनी लोकेशन बहुत लोकेशन। क्लियरली मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये हमेशा लास्ट पे ऐड की जाती हैं, और बाकी कंटेंट मिडल में रखा जाता है। और जितने लोगोज होते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होता है वो टॉप राइट या लेफ्ट कॉर्नर में आता मैम मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, मेरे से नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा हेल्प कर दें। है। जी जी, प्लीज प्लीज, आपसे नहीं हो रहा, आप एक मिनट दें मुझे। अहमद भाई मैं ब्रेकआउट रूम में ऐड कर रही हूँ आपको जावेद भाई के साथ, जावेद भाई को बता दें कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं। और अहमद भाई आपको अगले दिन भी मैंने गाइड किया था कि रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का लोगो ऐड कीजिए, कवर फोटो नहीं, ठीक है, उसको चेक कीजिएगा। जावेद भाई ये रूम वन की रिक्वेस्ट आई है, उसको एक्सेप्ट करें। ज्वाइन रूम पे क्लिक कर दें। अहमद भाई आप भी। और जहां तक रही बात कि कैनवा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट कैनवा के अंदर 2 मिलियन प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं। आप जिसको जितना ज्यादा कैनवा को यूज करेंगी, इसके अंदर बुक्स बनती हैं, इसके अंदर आपके पीडीएफ बनते हैं, इसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन बनती हैं, इसके अंदर आपकी वीडियोस बनती हैं, आपके थंबनेल्स पड़े हुए हैं, आपके डिफरेंट जो पोस्टर्स हैं वो पड़े हुए हैं। आप अगर चाहते हैं फ्लायर्स डिजाइन करने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे कैनवा के अंदर। मतलब कैनवा अपने अंदर एक बहुत बड़ी वास्ट लाइब्रेरी है जिसके अंदर हर चीज मौजूद है। तो आपको जो चीज डिजाइन करनी है आप कैनवा के थ्रू उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको डिजाइन कर सकते हैं, और इजी टू हैंडल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है इसको हैंडल करना। मैम जो हम वाटर मार्क की तरह का, जैसे मैं अगर फर्ज करें अपने चैनल का नेम लेकर आना चाहती हूँ, या अपना नेम ही लिखना चाहे ट्रेनिंग वाली वाटर मार्क की तरह लेकर आना चाहती हूँ, तो मैं उसको लिख के उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं तो वो वाटर मार्क की तरह ही शो होगा ना फिर?
जब भी वाटरमार्क ऐड करते हैं तो उसके लिए ये हमेशा ख्याल करते हैं कि जब आपने डिजाइन बनाना था तो डिजाइन के अंदर वाटरमार्क ऐड नहीं करते, क्योंकि वो डिजाइन और वाटरमार्क आपस में क्रॉस हो जाते हैं तो फिर आपका डिजाइन अच्छा नहीं लगता। तो उसके बॉटम पे राइट और लेफ्ट कहीं पे भी आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। तो वो आपका वाटरमार्क बनता है। अगर आप जिस तरह से हम वो करते हैं ना कि नोट्स देते हैं बच्चों को, तो ऊपर तो प्रॉपर राइटअप लिखा होता है एक प्रॉपर टेक्सचुअल फॉर्म में, और उसके बाद उसके बैक एंड पे उसी टेक्स्ट की बैक पे हमारा एक बड़ा सा एक वाटरमार्क होता है जो कि डायगोनल होता है, ठीक है, और हमने वो डायगोनली अपना नाम लिखा होता है। दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि वो जो चीज होती है ना वो हाइड हो सकती है, और उसमें जो होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, प्रिंटिंग में ज्यादा बच्चों को तंग नहीं करती। वैसे नॉर्मली तो बहुत सारे नोट्स ऐसे थे मेरे जिसमें बहुत ज्यादा तंग भी करती थे, बहुत इरिटेटेड होते थे बच्चे पढ़ते हुए कि भाई अगर अपना ही नाम लिख के ज्यादा पब्लिश करना है तो फिर आप ही अपना ही लिख लो और जो कंटेंट हमें देना है वो ना दो। तो ये मतलब प्रेफरेबल नहीं है, वाटरमार्क नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को जब आपकी चीज ही समझ नहीं आ रही ना तो आपकी चीज देने का फायदा नहीं हो रहा, ठीक। तो अगर आपने अपना वाटरमार्क ऐड ही करना है तो किसी ऐसी जगह पे ऐड कीजिए जहां से लोग उसको रिमूव नहीं कर सके, ठीक है। तो जब भी हम कोई डिजाइन अपना बना के पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें अपने लिए एक नाम का एक लोगो डिजाइन करिए जिसके अंदर आपका नाम लिखा हो। तो आप अपनी हर एक पोस्ट के अंदर बॉटम पे बिल्कुल उसको लास्ट पे पेस्ट कर दो। ओके, मिस ये बताएं कि जैसे मेरी टू डू लिस्ट अब इस पे बन गई है, तो मैं जब इसको फेसबुक पे अपलोड करूंगी तो साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करूंगी जो इधर इधर ही जी जी, क्लॉड एआई मैंने में बताई लिखी हुई आ रही है। नहीं 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 नहीं, क्लॉड एआई वाली डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है आपने। आपने क्या करना है, आपने वो जो टास्क में लिखा हुआ ना कि ये वाली ऐप डिजाइन करनी है, आपकी कोडिंग की बुक में भी, जो करिकुलम बुक है उसमें भी, और जो मैंने आपको भेजा है उस वाले को, फर्स्ट को जो टास्क नंबर लिखा है ना जहाँ पे उसके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जी उसको जी। कॉपी करें, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए और उसको कहें मेरे लिए एक अच्छी सी सोशल मीडिया के लिए एक जो है डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर दो। साथ में ठीक है। ये बताना जरूरी है ये टास्क नंबर 3 है, कोडिंग विद एआई का टास्क नंबर 3 है जो मैंने कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, फर्क सलीम भाई। अच्छा, ज़रा मुझे थोड़ा सा ये और बता दें कि ये अभी आपने जो सोशल मीडिया पोस्ट की बात की थी, तो ये चैट जीपीटी से हमने इसको लिखवाना है और उसके बाद फिर कैनवा पे इसको डिज़ाइन करना है, ऐसा है? नहीं, मैं उनको ये गाइड कर रही थी कि अगर आप वो कह रही है, मैं सुनना कि आपको बहुत सारी चीजें जो है ना, अब वो कैनवा के अंदर सिर्फ एक हम यही नहीं कर सकते कि हम एक पोस्ट डिजाइन कर लें, कैनवा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनको गाइड कर रही थी कि आपको जो चीज भी चाहिए ना कैनवा के अंदर, उसकी सर्च में जो मेन होम सर्च आती है ना जहाँ पे, वहां पे आप लिखेंगे आपको सारे डिजाइन मिलते जाएंगे। तो पहले आप टेम्पलेट्स पे प्रैक्टिस करते जाए, फिर ग्रेजुअली स्लोली आप उन चीजों को कर सकते हैं। जो चीज आप मुझसे पूछे वो सोशल मीडिया पोस्ट की, वो जो पोस्ट है ना उसको उस टेम्पलेट से डिजाइन कर ले पहले। डिजाइन करने के बाद उस डिजाइन को पहले आपने सिर्फ कैनवा से डिजाइन बनाना है, डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो डिजाइन आपका बन गया, आपने लोगो ऐड कर लिया रिहानी आई टीचर्स इंस्टीट्यूट के टॉप राइट या लेफ्ट कॉर्नर में किसी एक जगह उसको फिक्स कर लिया। उसके बाद आपने उसी पोस्ट को चैट जीपीटी को शेयर कर देना है और उसको कहना है कि इस पोस्ट को रीड करके मुझे डिस्क्रिप्शन दे दो सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए, और मुझे सजेस्ट करो इसमें इंप्रूवमेंट क्या करनी है। तो वो दोनों चीजें आपको गाइड करते हैं, फाइन। ठीक है। जिसके लिए मैं आज हमारी जो मीरब है इनकी पोस्ट पे मैं बार बार ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि रिहान एआई टीचर, रिहान एआई, रिहान स्कूल टास्क हेल्पर जीपीटी तो मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस कराई थी और आप सबको उसका लिंक शेयर किया था, नहीं किया तो मैं आज दोबारा उसका शेयर कर देती हूँ। और आप उसके थ्रू अपनी जो टास्क की डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आप फेसलेस वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप अपने कैनवा अपलोड करें, आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, आप उसके थ्रू अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर रखें। मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए बार बार कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी हुक लाइन होती है जो किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करती है कि आपकी जो इसके नीचे क्या चीज आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे मोबाइल हो लैपटॉप हो सबसे पहले हमारी डिस्क्रिप्शन नजर आती है कि अच्छा ये चीज बनी क्या है, फिर हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम उसको स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं, अदरवाइज हम इतनी स्पीड से स्क्रॉल करते हैं कि हमें नजर ही नहीं आना चाहिए। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, इन पर थोड़ा सा ख्याल करें। मैं देहातपुर टास्क हेल्पर जीपीटी का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है, इस जीपीटी को प्लीज सब यूज कीजिए और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। दूसरा, टीचर ट्रेनिंग की वो जो वेबसाइट थी मेरे पास थी कहाँ गई? ये- जी मेरा आपका हैंड रेज है, काफी देर से बताइएगा।
मैम मेरा जो स्टोरी पोस्ट है वो भी पोस्ट हो रहा है उधर यूट्यूब पे, और जो दूसरा टास्क था क्लाउड एआई वाला वो भी पोस्ट हो रहा है, तो मैं कर दूँ वहाँ पे पोस्ट? कर दे बिल्कुल कर दे। मैंने तो ये कहा है कि भैया आप जितने अपने टास्क यूट्यूब पे पोस्ट करोगे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते जाओगे, तो यूट्यूब पे आप पोस्ट कर सकते हो। वहां पे यूट्यूब पे लिंक्स क्लिकेबल होते हैं, तो लोग आपसे सीखना शुरू करेंगे, भाई मेरे मुझे कोडिंग सिखा दो, किस तरह करी हुई है ऐप। मेरे की ब्रांडिंग होना शुरू हो जाएगी, लोग मेरे से सीखना शुरू कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं कह रही कि आप गूगल शीट में भी ऐड करो। गूगल शीट में मैंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया आपको कि आपने सिर्फ जो है वो फेसबुक और लिंक्डइन के लिंक्स ही ऐड करने हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे कोशिश ओके मैम। इसके साथ ही साथ पार्टिसिपेंट्स मैंने अपनी रिहांस एआई टीचर इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वो भी आप सबके साथ शेयर कर दी है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके लिए काफी सारी चीजें जो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, जबकि ये रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। ठीक है, जी मैम, तो मेरे पास वो नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास ग्रुप ही नहीं है। आप सिद्धरे जी सिद्धरे मैं आपको पर्सनली भेज देती हूँ, परेशान जी नहीं हो। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। अच्छा, लोगो मुझे कहाँ से मिलेगा उस पे लगाने के लिए? फेसबुक पे जाइए, वहां लिखे रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट, प्लीज हमारे इस पेज को लाइक भी कर दें, और इसके जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हमारा लोगो ही है, उसको सेव कर लें। ओके ओके। ठीक है, एक तो लाइक करने का फायदा ये होगा कि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहेंगी, उसी पेज पे हम आपके सारे सर्टिफिकेट्स और आपकी सारी अनाउंसमेंट शेयर करते हैं, साथ ही साथ आपकी उसी पेज पे क्लासेस लाइव होती है, वो भी आपको वहां मिलती जाएंगी। और फारूक भाई अभी तक आपका बाला नहीं मिला मुझे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ऐड तो मैंने वैसे किया हुआ है, इस नाम में शायद यहाँ अभी नजर नहीं आ रहा सामने। मैं एडिट एडिट कर ठीक देता है, मुझे बता दें प्लीज। राहुल भाई, जो लिस्ट मैंने भेजी थी ना उसमें सबके बाला के साथ लिस्ट दोबारा भेज दो, बड़े अच्छे भाई हो मेरे, वो मुझे कल चाहिए। मैम अच्छा, आप कौन सी सब ना अपनी लिस्ट? जो पार्टिसिपेंट्स की भेजी थी इन सबकी, मैं चेक कर लूंगा, मुझे याद नहीं है फिर से। हाँ फेसबुक पे नहीं, मेरी हमारी व्हाट्सएप की चैट में उसको देख लेना। जी जो जी मैम। आप सब पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज अपना वाला जो है वो अपनी गूगल शीट के नेम के साथ ऐड कर लें, ताकि मुझे आपके जाने के बाद भी वो गूगल शीट याद दिलाती रहे कि भाई इतने इतने पार्टिसिपेंट थे और ये वाला वाला था, तो अगर मुझे किसी से काम पड़ जाता है तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, मैम वो आईडी के लिंक भी ऐड करवा देना, वो भी नहीं है। आज हाँ भाई अपने फेसबुक के और सोशल मीडिया के लिंक्स भी ऐड कर दें प्लीज सब, आपके चारों लिंक्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड करूं तो वो वेरीफाई कर लें आपको, फिर सर्टिफिकेट इशू हो जाए। जी मिसिर। वो थोड़ा सा छोटा सा ये प्रॉब्लम, लेकिन आप गूगल शीट की बात करी है तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। वो ना जो मेरा जीमेल है ना उसमें जो मेल्स आती हैं तो आज और कल उसमें ये हुआ है कि जो पुरानी मेल्स थी ना उसने आज सारी वो ख़त्म कर दी हैं, और उसने कहा कि आपका स्टोरेज ख़त्म हो गया है, तो जो आपकी जो शीट वाली मेल आई थी ना मुझे वो ख़त्म। तो अब मैं इसको खुद ही ढूंढती हूँ अपनी हिस्ट्री से, कभी कुछ, तो इसको किस तरह मैं बुक मार्क करी हूँ, बुक मार्क भी नहीं हो रही है। तो ये मुझे कोई हल कोई बात बताएं नहीं कि भैया, ये मेरी ऊपर ही रहे, ताकि क्योंकि ये मैं ऊपर, रोज इस पे काम करना होता है, तो वो ये खोज ना जाए कहीं। ठीक है अभी 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करो, अभी आपको मिल जाती है, परेशानी वाली कोई बात। दूसरी बात, आप अपनी जो मुझे बता रही हैं आपकी क्या कहते हैं उसको, वो आपकी जीमेल को, उसमें जितनी प्रमोशंस है ना, प्रमोशन के बॉक्स में चाहिए उसकी सारी प्रमोशन डिलीट करते रहे। उसके सोशल्स के जितने सोशल कॉन्टेक्ट है, मतलब हम सोशल में क्या आता है, आपने फेसबुक पे क्या पोस्ट किया है, आपने लिंक्डइन पे क्या पोस्ट किया, आपने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, ये सारी चीजें भी उस दोनों पोर्शन को डिलीट करते रहा। वो जंक मेल्स होती हैं, उन दोनों मेल्स को जितना आप डिलीट रखेंगे उतनी आपकी मेल जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है ना वो फ्री रहती है, स्टोरेज फ्री रहती है, तो वो आसानी हो जाएगी। अब आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बता दूं कि आपको गूगल शीट कहाँ ढूंढनी है अभी।
मिस दौलत, आप भी अपना वाला वाली जो है अपनी गूगल शीट में प्लीज नाम के साथ ऐड करते हैं और अपनी गूगल शीट को फिल कर ले, ठीक है? अभी तो आपने गूगल शीट ही खोली हुई है, अब आपको कैसे बताऊं? मिस इरम, ये जो आप लिखनी है ना, इरम इसको मुश्ताक बंद एजुकेशन करूं? वाली, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको डिक्रीज कर दें। ये 16 फॉन्ट इसका बहुत बड़ा है। वो ना असल में बात ये होती है, मुझे डर लगता है मैं खोलती हूँ किसी और की शीट पे ना काम करना शुरू हो जाऊँ, हालांकि लोग हैं, फिर भी मैं इसलिए इसको मोटा मोटा भी रखा हुआ है कि भाई पहले मैं अपनी ढूंढूं, देखूं ये मेरा ही है, रंग भी दिया हुआ है ताकि भाई अच्छा, किसी को भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो, इसलिए। जबरदस्त हो गया। अब आप नेक्स्ट प्लस साइन पे क्लिक कर दे। नेक्स्ट इस किस शीट पे? ऊपर ऊपर ठीक। ऊपर देख, या न्यू टैब ओपन कर। अच्छा, अब आपने जब भी शीट खोलनी है ना, तो आपने अपनी मेल्स में नहीं जाना। ये जो 9 डॉट्स है ना आपकी पिक्चर के साथ में, उन पे क्लिक करें। इसमें स्क्रॉल करें, नीचे आए, ये ये शीट शीट्स का लिखा ऑप्शन हुआ है, है। इसको क्लिक कर दें। ये पहली शीट पड़ी हुई है। बस बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त बचा दिया आपने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, ठीक तो है, यहाँ ठीक। से आपको अपनी शीट मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, चल, ये जरा ऑल द, मुझे कैनवा पे गाइड कर दें प्लीज के वो किस तरह से हाँ जी, जनरेट हाँ जी, करनी है। आप जी। स्क्रीन शेयर करते हैं फारूक भाई। मैं सिद्रा होप सो कि इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन करेंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगी। दो के हम मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं हुआ, आपको पता चला होगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आपकी प्रेजेंस में और बहुत एक अच्छा कनेक्शन रहा। तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू प्लीज कनेक्ट विद माय पार्टिसिपेंट्स। ये जो आपके 20-21 फेलोज रहे यहाँ पे 1-2 हफ्ता आपके साथ ऑलमोस्ट, इनके साथ प्लीज कनेक्टेड रहिएगा ताकि जी आप सब एक दूसरे इंशाल्लाह से जरूर। सीखते रहें। जी। मैंने ये कहा तो था अपने सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो मेरे साथ शेयर कर दे, ताकि या तो जूम चैट में शेयर कर दे, और ताकि ये सब आपके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करके आपके साथ ऐड हो। मैं सिद्रा जी कहाँ जैसे ही मैं बनाती हूँ तो मैं सेंड कर देती हूँ। चलें, ठीक है, ओके, हाँ बना लें, अब तक तो बना लेना चाहिए था ताकि नई क्लास में जाए तो कुछ दिन तो पुराना हो जाता आपके अकाउंट्स। मुझे ये था कि मैं दूसरे जो पिछले वाले हैं उसी के साथ कनेक्ट हो जाऊं, फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं, न्यू बनाती हूँ सारे। पुराने वाले यूज करें, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। कोई भी चीज सही। नई नहीं बनाइए आप। मैं ये फारूक भाई को एक्सप्लेन कर लूं और फिर अगर टाइम हुआ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने पहले दिन शुरू किया था और मैंने इतना क्रिटिसिज्म फेस किया था, इतना ज्यादा कि मैं रोने लगी थी एक टाइम पे आके कि मैंने नहीं करना। तो मुझे कहा था, फिर समझाने लगे कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये होता रहेगा, हर बार बैठ जाओगी छोड़ के, और क्या कुछ छोड़ के बैठोगी। जी। तो फिर मैंने शुरू किया कि ठीक। जी ठीक। फारूक भाई, आपको आपने क्या बनाना है, कैनवा का जी डिजाइन? कैनवा पे। जी जी। अब आप यहाँ पे लिखिए सर्च में फेसबुक स्केयर पोस्ट। फेसबुक स्केयर, स्केयर पोस्ट। स्क्वायर स्क्वायर पोस्ट। जी स्क्वायर, ये आ गया, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें, ये स्क्वायर पोस्ट आ गया। जी, अब ये आपका कैनवस आ गया आपके पास। आप ऊपर, सबसे ऊपर आपके पास आएंगे डिजाइन, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको डिजाइन नजर आएंगे, ठीक है? उन डिजाइन पे क्लिक करके आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, जो आपको लगता है कि इस कोटेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, या आप कोटेशन ओके। के कीवर्ड्स को कॉपी करके, ये जो सर्च बार है ना हमारी, ये वाली, ये सर्च बार, इसमें लिखेंगे, उसके रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। जैसे वो स्ट्रगल से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे आप स्ट्रगल से रिलेटेड स्ट्रगल लिख दें तो आपको सारे टेम्पलेट स्ट्रगल के रिलेटेड नजर आएंगे। उनमें से कोई एक या दो, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर ले और उसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी कैनवस पे आ जाएगा। हाँ, अब जो पहला ही उन्होंने आपके साथ शेयर किया था ना टेम्पलेट, वो एक बहुत बड़े जो है, जी
आपके पास कैनवा प्रो नहीं है फारूक भाई? नहीं, मेरे पास कैनवा प्रो नहीं। अरे वाह नसीमुल्लाह भाई, आपके होते हुए देख ले, फारूक भाई के पास कैनवा तो प्रो नहीं है। वो मेरे ना कैनवा मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी तो दिलवाए। आया है कल का। जी अदरवाइज जी मैडम, अच्छा परसों रिक्वेस्ट की थी सर से कि मुझे ईमेल शेयर कर दे, मैं उनको शेयर कर दूं। अभी आज कुछ में प्रॉब्लम आई है तो मेरा ख्याल है कल तक ठीक हो जाएगा, मैंने दोबारा शेयर कर दूंगा। चलें ठीक है। मिस सीरम के पास भी नहीं है, राहुल भाई के पास भी नहीं है, और मिस लुबना के पास भी, मिस लुबना के पास तो है, मिस लुबना है नहीं है? तो फिर नहीं प्लीज मैम, नसीम वो नहीं है। तो ठीक है कर देंगे शेयर, बात हुई भी है। मैं हाँ सीरम नसीमुल्लाह भाई को आप शेयर कर दें तो वो आपको शेयर कर देंगे। मैं सीरम के पास, मैं सृजना के पास भी था लेकिन वो आज वर्क नहीं कर रहा, तो वो जो ही अच्छा अच्छा। नहीं सर, आपने जो मुझे शेयर किया था ना, वो उसने एक दिन काम किया था और जब मैंने उसको दूसरे दिन चलाया तो वो अल्लाह हाफिज हो गया। उसके बाद से हम ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा चले, मैं दोबारा जो ही ठीक होता है मैं आपके साथ शेयर सर जब मैंने भी आपसे ऐसा एक बात होता है ना, करनी थी। तो वो जो कैनवा प्रोवाइडर होते हैं उनको जरूर बताते हैं कि आप ये कैनवा वर्क नहीं कर रहा, तो वो हो सकता है कि वो आपको बता दे कि ऐसा होता है कि एक कैनवा के अंदर ना 500 की लिमिट होती है, 500 पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते हैं एक कैनवा लिंक के साथ। तो अगर आप वो 500 की लिमिट पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद आपने उनको बताना होता है कि आपका जो कैनवा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप अपने अपने ईमेल जो है नजीमुल्लाह भाई के साथ शेयर कर दें, वो आपको शेयर कर देंगे। काम सेव नहीं हो पाता वहाँ, कहाँ सेव नहीं हो पाता आजिम भाई ये बता दे मुझे। फर्क भाई इनमें से जो आप, अब आप सॉरी क्या मैम, वो करेंगे? मामा हो गया, वो मैम लिख रहा था मैं ना। उसकी कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि काम कहाँ सेव नहीं होता? ये जो कैनवा मैम हम लोग लेते हैं किसी कैनवा प्रोवाइडर से या कोई इस तरीके से, तो वो जिस टाइम पर उनकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म होती है बीच में, अगर या कोई इशू आ जाता है, तो जो भी काम हम लोगों ने किए हुए होते हैं वो फिर वो सारे जो है ना वो चले जाते हैं उधर से। मेरे साथ तो हाँ यही हुआ ये था। बात आप सही कह रहे हैं कि अगर हमने कहीं कोई ऐसा चीज जो इनकम्प्लीट छोड़ी हो और हम कहते हैं कि अच्छा मैं बाद में कर लूंगा, और अगले दिन वो कैनवा कहीं के वो कहे कि जी ये ड्रॉप हो गया या कोई भी रीजन आ गई, तो वो वाकई वो ग्लिच कर देता है। वो ये जैसे बात तो सही है। जी अपलोड्स हैं आपके और वो सारी चीज़ें हैं, तो हम्म, वो आई थिंक। ऐसे ही है। पर भाई इनमें से कोटेशन वाला, हाँ ये भी अच्छा है। अब इसमें ये जो कोटेशन लिखी हुई है इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट, इसको सेलेक्ट करें, डबल टैप करें इसको। पर भाई अच्छा एक मिनट रुक जाए, ना करें इसको। अब ये मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास ये लाइन शो कर रही है ना, ये शो कर रही है कि आपने कैनवा प्रो का टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये वाटरमार्क देगा कैनवा का, इसका फायदा नहीं है। आप कोई ऐसा टेम्पलेट सेलेक्ट करें जिसके ऊपर ओके। येलो क्राउन ना हो, येलो क्राउन के बगैर वाला सेलेक्ट कीजिए। जी मिस मिस जवेरिया, मिस शान, वन बाय वन बताइएगा। मिस ये बताइएगा, ये जो यूट्यूब पे जब हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो हो और या पोस्ट हो या कुछ भी हो, तो ये जो वाटरमार्क का भी आपने जिक्र किया है, तो ये क्या इशू क्रिएट करता है? स्पेशली यूट्यूब की मैं बात कर रही दोबारा बोलिएगा, यूट्यूब पे क्या क्या वाटरमार्क का क्या कह रही है? हूँ। यूट्यूब पे, स्पेशली यूट्यूब पे अगर हम कोई वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग या कुछ भी वीडियो जो हम अपलोड कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उस पे जो भी किसी भी टूल का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो वाटर मार्क आता है, तो क्या ये इशू करता है, कर सकता है? देखिए अगर हम किसी दूसरे की चीज को अपनी चीज कह के प्रेजेंट करेंगे ना, फिर डेफिनेटली वो इशू करेगा, क्योंकि उसने वाटरमार्क लगाया ही इसलिए है कि आप उसकी चीज को क्लेम नहीं कर सकते, तो यूट्यूब उसको कॉपीराइट का क्लेम दे देता है। बट कुछ लोग वाटरमार्क लगाते हैं लेकिन आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता। जैसे सरहान की कोई भी वीडियो है, आप उसको डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आपको कभी कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि हाँ मेरी चीजें बाकी सब पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं और आप है, हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी कोई भी चीज का कॉपीराइट का जो है वो राइट दूसरे को नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है। अगर कोई मेरी चीज पोस्ट करेगा तो मैं कॉपीराइट क्लेम जरूर करूंगी। मैं मुझे इसका बताएगा, सुनो एआई पे जो हम सॉन्ग्स बना रहे हैं या इस तरह की जो भी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और वो यूट्यूब पर अगर जाता है, ठीक है, तो उसका जो अगर नहीं होता, जैसे आखिर में आ रहा होता है, कोई साइन आ रहा है, उस प्लेटफॉर्म का, तो उससे तो कोई इशू नहीं होगा? नहीं हो। अच्छा जी जी फर्क मिस भाई, मरियम, इज इट फाइन? आपकी, हाँ, अब आप जो है ये जो नीचे लिखे ना, वी बेंड सो वी डोंट ब्रेक, इसको सेलेक्ट करें।
और फिर हाँ इसको डबल टैप करें टेक्स्ट के ऊपर। हाँ ये सर डबल टैप करने से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है ये। मैम टास्क डन, जबरदस्त शानदार। अच्छा जी, okay participants, thank you so very much for joining today. Miss, We'll see you आपको tomorrow at the same मेरा time. Our class time is about to end. Thank you so very much, and keep doing amazing things. Take good care of yourself. Allah Hafiz.